मेरे को ऐसा हो गया कि उसने जो भट्टी ने लास्ट वर्ड्स बोले थे मुझे कि जिंदगी में कभी भी अपना मुंह मत खोलना, ये उसका लास्ट सेंटेंस था। तो इट वाज रिंगिंग इन माय हेड, केप्ट ऑन रिंगिंग फॉर इयर्स। राइट। तो ये हालत हो गई कि घर में गेस्ट आते थे तो मैं बाथरूम में छुप जाता था, हेलो नहीं बोला जाता था। वंस आई वाज इन द बाथरूम फॉर 9 hours बिकॉज़ दे सैट फॉर 9 hours whosoever came Oh my on a God. Sunday and I just couldn't speak. कैट के लिए एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने फाइनल ईयर में, करियर लॉन्चर होता था। करियर लॉन्चर। पहले मॉक टेस्ट में टॉप, और उनके सेंटर होते थे 10-10, मतलब जयपुर सेंटर, लखनऊ सेंटर, चेन्नई सेंटर। वो सेंटर का ऑल इंडिया रैंक निकालते थे, उसमें भी फर्स्ट मॉक टॉप, सेकंड मॉक टॉप, थर्ड मॉक सेकंड हाई, फोर्थ टॉप, फिफ्थ। तो 5 में से 4 मॉक्स में मैंने टॉप किया उनके मॉक टेस्ट। तो उसका जो चेयरमैन था कंपनी का, उसने बुलाया मुझे। उसने बुलाया कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने क्यों बुलाया तुमको। मैंने कहा यू कैन गिव मी योर चेयर। मैंने 55,000 वर्ड्स पूरे याद कर लिए ऑक्सफोर्ड, मतलब पूरे 55,000 वर्ड्स। हाँ, अभी तक भी मैं करता हूँ सेमिनार अपने जीआरई के लिए। उसमें मैं सीधे बोलता हूँ ऑडियंस से, 600 लोगों की ऑडियंस से मैं बोलता हूँ कि तुम बताओगे वर्ड्स और मैं बताऊंगा मीनिंग और 10 synonyms और 10 antonyms. Let the door be slammed shut in your face 500 times. You will learn to have rejections. Correct. हार्वर्ड एजुकेशन आपको कभी यूनिक नहीं बना सकती। आपके बैच में 1000 लोग होंगे जो हार्वर्ड में, तो हार्वर्ड का टैग डज नॉट मेक यू यूनिक। What makes you unique is your unique belief system, the way you view the world from your unique lens. Right. Hello everyone and welcome back to the Dhairya Decodes YouTube channel. In today's podcast episode, we have somebody who is extremely inspirational, someone I have learned so much from. Let me begin with asking you this very, very intriguing yet interesting question. If you were to get into Harvard Business School, what are the chances that you would drop out of that college? I mean, I cannot even imagine if anybody would do that. But what if I told you that my guest on today's episode, Mr. Sandeep Gupta, actually went on to get an admit not just into Harvard Business School, but also into IIM, the BAL, one of the most coveted and prestigious business schools in India, and dropped out of both of these prestigious institutions to actually teach people how to get into all of these top Ivy League institutions and get the perfect GMAT score with a perfect 800 on 800 score himself in the GMAT test. Somebody who's been in the teaching industry for almost 27 years now and has been creating the top 1 percentile when it comes to GMAT scorers all across the globe. I could keep going on about his achievements, but he's the GMAT lion himself and definitely the best GMAT trainer in Asia. Today on the Dhairya Decodes podcast, I have with me Mr. Sandeep Gupta joining us. Welcome to the Dhairya Decodes podcast, sir. Thanks, Dhairya. It's one more time that we are really interacting. We did once interact, Yes. and it's really amazing to be with you, really speaking, and I admire your work quite a lot. So No means a lots are coming from you. I hope I did justice to your introduction. That's the first thing, No, because it's there's nothing so like much. that. Nothing like that. Don't make too much of it, guys. Just do it. No, but I think, sir, let's start with, obviously, there is so much with respect to the things you have achieved professionally, the impact you are creating, and things that are there in the public eye. But there's so many things about Sandeep Gupta as a person, probably about your journey, that a lot of people don't know about. At least I have not seen that out on the internet. I want to start with asking you that when you were growing up in your early years, what kind of a family were you raised in? How did coming from a certain type of a family, क्योंकि जिस family से आप आते हो, जिस तरीके का आपका background होता है, मुझे ऐसा लगता है that it has a lot of impact on your early thought process and the way you start looking at life, money, situations and your goals. So, उस चीज का क्या impact रहा आपकी life में and what kind of a background did you come from? So, okay, I grew up in a family that valued education a lot, learning a lot, and not education of the formal kind, but genuinely something that we always grew up with, that you got to really be informed, you learn, you got to have certain skills. And the reason for that was both of my parents were IAS officers themselves. Okay. My dad worked with the Ministry of Finance in Delhi and my mom worked with the Ministry of External Affairs. Okay. And these people
generally the kind of people who worked with them, they were not very inspirational because government servants and they get set in their ways. And this was even before my birth, by the way. So it was 1971 that I'm talking about. Wow. They joined the cadre in 1963. So we are talking that long back. Long back. Yeah. So 1971, because these people did so well within the government, they were kind of entrepreneurs within the government. Correct. Okay? And that is why they were probably in the top 1 percentile of the civil services grade. And fortunately, they were offered to train themselves or to upskill themselves at Harvard Business School's management program and Columbia Business School's and Public Policy School. So my dad chose to go to Harvard Business Schools for an accelerated MBA. 1-year program, advanced management, and my mom went to public policy and management to Columbia in the same year. Wow. So, oh my God. Okay. Yeah, that was 1970. That's a power couple right there. Yeah, so मतलब 1971 की बात है, पुरानी बात है काफी. और वो लोग जब वापस आए पढ़ के, तो पता नहीं ऐसा कुछ हो गया कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उनको बाइट करने लग गया बहुत ज्यादा. इंडिया की जो ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेसेंसी है, जो एक तरीका है काम करने का, करप्शन बहुत ज्यादा ही था उस टाइम. तो उनको बहुत चिढ़ होने लगी मतलब इस चीज से. राइट. तो प्रोबेबली दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड इफ दे वर टू हैव अ चाइल्ड दे bombard that child with completely different wisdom. So I had an elder sister also who wasn't, because she was born before they went, just 2 years before, and उसके साथ उतनी ज्यादती नहीं हुई. आप फंस गए सर. मेरे साथ थोड़ा ज्यादती हो गई. तो when I was born in 1974 जून, 3 साल की एज से मुझे याद है, जब से थोड़ा बहुत याद है, थोड़ी बहुत मेमोरी होती है ना आपकी. तो डिनर टेबल पे भी मतलब हार्वर्ड. और हमारे यहाँ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स में इतनी मैगजीन्स आती थी, इतनी ज्यादा, पढ़ता कोई नहीं था, कोई भी. मतलब तब तो रशिया यूज्ड टू बी अ बिग मिस्ट्री टू द वर्ल्ड. मतलब अमेरिका और रशिया यूज्ड टू बी बिग एनिमीज. पूरा कोल्ड वॉर चल रहा था. और 1971 तो पाकिस्तान के साथ भी वी वेंट टू वॉर एंड सो ऑन. तो उसमें जब रशिया के साथ रशियन मैगजीन्स के इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन आते थे घर में, और एक से एक मतलब सोवियत मर्द, सोवियत नारी, सोवियत घर, सोवियत, मतलब इतना. बिकॉज वो एक्सटर्नल अफेयर्स में थी मॉम, तो वो सब घर में आते थे. एंड डैड यूज्ड टू ब्रिंग इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, द इकोनॉमिक टाइम्स एंड सो ऑन. राइट. और पता नहीं उन लोगों ने मेरे कैसी आदत लगा दी, एंड दे वर वेरी गुड एट इट. मुझे काफी क्यूरियोसिटी, आई मीन दीज आर बोरिंग थिंग्स फॉर अ चाइल्ड. द इकोनॉमिस्ट इज बोरिंग इन जनरल. इट इज. मैं अभी भी शायद नहीं पढ़ सकती. इट्स डिफिकल्ट. मैं मान सकता हूं. काफी है चैलेंजिंग. इट इज चैलेंजिंग, नॉट जस्ट चैलेंजिंग एंड बोरिंग एट द सेम टाइम. बट समहाउ उनको एक नैक था कि उन्होंने मुझे आदत लगा दी इन सब चीजों की. तो 7, 8, 10 साल की एज होते होते तो मैं सब कुछ ही पढ़ लिया. मैंने पूरा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ लिया, पूरी डिक्शनरी याद कर ली 14 इयर्स की एज, पूरी मतलब पूरी. उन्होंने, ये मेरा कुछ अचीवमेंट नहीं है, उनका. तो उनका ये था कि 4-5 चीजें हैं जिसमें आपकी गलती नहीं होना चाहिए. मैथ्स आपको ऐसी आनी चाहिए कि आप ओलंपियाड में नंबर 1 रैंक ला पाओ. तो मुझे पढ़ाया गया ओलंपियाड के लिए, बड़ा खुश, मजा आता था मुझे. वोकैबुलरी, ग्रामर आपकी एकदम परफेक्ट, उसके बाद रीडिंग बहुत अच्छी हो, रीजनिंग बहुत अच्छी हो, लॉजिक बहुत अच्छा हो, नंबर्स पे बहुत अच्छा, एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो. तो ये बचपन से ही थॉट था कि ये सब. तो कम्युनिकेशन के लिए मुझे काफी ट्रेन किया 7-8 साल की एज से. तो स्कूल में जो प्लेज वगैरह होते हैं, तो 10 साल की एज में 5वीं क्लास 5th में था मैं. तो वी वर सपोज टू होस्ट अ प्ले, एंड मुझे काफी, एक टीचर थे हमारे मिस्टर भट्टी, कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर टाइप के बंदे. हाँ, मतलब वो तो मैं आज भी याद करता हूँ तो 1 सेकंड के लिए तो डर ही जाता हूँ. तो ही ट्रेन्ड अस फॉर 3 वीक्स. तो कुछ एक प्ले करना था, और मेरी आवाज एकदम साफ थी, बचपन में भी एकदम साफ आवाज. तो मुझे नैरेटर का रोल मिला उसमें. तो मैंने शुरू किया ऐसे स्टेज पे जाके, नॉर्मल 500-600 पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, नॉर्मल जो स्कूल का फंक्शन होता है. तो कि गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू टाइप बच्चे जो आई कांट इवन इमेजिन. और उसी टाइम बैक वॉल पे एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की आवाज आ गई, कुछ बूम. अच्छा, कुछ ऐसे. तो मेरा माइंड एकदम स्क्रिप्ट से बाहर ही चला गया, वो रटा हुआ, क्योंकि उस टाइम तो नेचुरल कुछ होता नहीं था. And this guy got very agitated, Mr. Bhatti, and he your teacher, my teacher. मतलब उनने 3 हफ्ते तैयार किया था सब कुछ, मतलब जितने बच्चे थे सबने खूब झापड़ खाए थे उनसे, सब. वो he was like that, perfectionist होता है. और आके बोला,
व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्पीक। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा, क्या हो गया, बोलो। ऑन द स्टेज? हाँ, ऑन द स्टेज। तो अब मैं क्या बोलूं जब आवाज याद ही नहीं आ रहा, तो इट्स लाइक कोई फायदा नहीं तुमको सिखा के, मेरा कुत्ता तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो सीख जाएगा इतनी बार में। तो और वो पंजाबी हिंदी पूरा मिक्स, दिल्ली वाली जो स्टाइल, ऐसी गालियां निकली स्टेज पे। फिर मैं उसकी तरफ ऐसे देखा, वो तो इतना लंबा चौड़ा बंदा था, मैंने देखा क्या बोल रहा है, मैंने फिर देखा उसके तरफ, ऑब्वियसली स्टेज पे मार दिया। मैन आई फेल ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज, ही वाज सो स्ट्रांग, आई वाज अ चाइल्ड। हाँ, फिर मैं खड़ा हुआ, फिर से उसकी तरफ देखा, अगेन ही, तो 2 बार ही स्लैप्ड एंड माय डैड वाज इन द ऑडियंस। ओह माय गॉड। तो मेरी स्टोरी का टाइटल भी है, डैड विल यू किल मिस्टर भट्टी एंड गो टू जेल। एक्चुअली है मेरी स्टोरी का टाइटल। तो डैड केम ऑन द स्टेज की क्या हो रहा है, मतलब ये, और प्रिंसिपल आ गए बीच में, और उन्होंने बोला कि सॉरी कुछ ऐसा आज तक नहीं हुआ, वील कॉल ऑफ दिस इवेंट। मतलब कुछ ज्यादा ही है। सारे जो पेरेंट्स बैठे थे, they were also screaming, how can you do that to a child? Correct. How can you? Yeah. तो वो प्रिंसिपल came and he sent Mr. Bhatti away कि जाओ तुम। My dad went to the stage and told the principal कि मुझे भट्टी चाहिए अभी के अभी, उसका सर तो मैं फोड़ के जाऊंगा, उसके बाद भले मुझे जेल हो जाए। तो that is the title कि will you really kill Mr. Bhatti and go to jail? So this happened, but this left a very deep scar on me, like very deep scar. As a It was just that, okay, मतलब बच्चों को बोला जाता है टीचर तो मारते ही रहते हैं, हमारे टाइम तो कॉर्पोरल तो बहुत नॉर्मल थी, मतलब, लेकिन मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ। तो ये एग्जाम के 1 महीने का पहले जो एनुअल फंक्शन होता है, एग्जाम के थोड़ा पहले ही होता है स्कूल में। तो ये आया कि एग्जाम लिखनी है, मेरा मन हट चुका था कि स्कूल तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से एग्जाम खत्म कराया 5th स्टैंडर्ड का। 2 महीने का छुट्टी आई, तब तो somehow they tried to make me cope with life in general, थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाना, सब करना। जैसे ही जुलाई आया कि स्कूल जाना है वापस, I put my foot down कि मतलब you can do whatever you want, I will not go, कि टीचर से खराब कुछ नहीं होता। तो मैं टीचर से खराब कुछ नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। तो बार मतलब स्कूल नहीं जाएगा, 5वीं क्लास पास बच्चा कैसे चलेगा? तो फैमिली के सारे लोग वो भी IAS ऑफिसर्स। तो फैमिली के मेरे ताऊजी हुआ करते थे उस टाइम पे। मेरे पापा ने बोला चलो ठीक है, मान लेते हैं, कहीं ऐसे स्कूल में करा देते हैं जहाँ अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। काउंसलर्स के पास ले गए, ये करा वो करा, और बहुत कोशिश की गई, और फाइनली माय डैड सेड कि ठीक है, ऐसे स्कूल में करा दो जहाँ अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। और एक वही काउंसलर ने भी बोला अभी वुंड बहुत फ्रेश है, 1-2 साल में ठीक हो जाएगा, 12th करा देना रेगुलर, आप कोई बात नहीं, तो घर पे पढ़ाओ, आप तो पढ़े लिखे लोग, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो माय डैड अग्रीड, बट द प्रेशर दैट केम फ्रॉम द फैमिली कि तुम बच्चे को पढ़ा नहीं चाहते, तुमने उसका अनपढ़, ये जब बड़ा होगा तो इसके दोस्त कहाँ निकल जाएंगे, तुम्हें अंदाजा नहीं। तो बट ही वाज वेरी क्लियर कि नहीं, मतलब, तो डैड वाज अ वेरी सेंसिबल मैन, एंड दैट रियली लेड टू मी। अब पूरे दिन एक बच्चा घर में है, पूरे दिन ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं, मतलब ग्रेजुअली 2-4 जो बनते हैं स्कूल में वो गए, वो तो ना। मेरे को ऐसा हो गया कि उसने जो भट्टी ने लास्ट वर्ड्स बोले थे मुझे कि जिंदगी में कभी भी अपना मुंह मत खोलना, ये उसका लास्ट सेंटेंस था। तो इट वाज रिंगिंग इन माय हेड, केप्ट ऑन रिंगिंग फॉर इयर्स। राइट। तो ये हालत हो गई कि घर में गेस्ट आते थे तो मैं बाथरूम में छुप जाता था, हेलो नहीं बोला जाता था मुझसे। मतलब घर में अगर बोला जाए कि इसको हेलो बोल दो तो मैं से नहीं बोला जाता, ऐसी हालत थी 7 साल। And I used to, and once I was in the bathroom for 9 hours because they sat for 9 hours, whosoever came on a Sunday, and I just couldn't speak. I couldn't blurt a word except to my parents. Like nobody did I speak to for 7 years. That was the level of impact that incident. तो इतना ज्यादा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि पेरेंट्स ने फिर, क्योंकि वो रीडिंग की बहुत आदत थी उनको, तो घर में बैठा हुआ है बच्चा, वो क्या करे। तो उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। दिस वाज 1984 बाय द वे, सो 74 to 84 नो इंटरनेट। सो दे यूज्ड टू बी दीज बिग लाइब्रेरीज विद वीडियो कैसेट्स, तो कि रोज जाओ। एक तो डॉक्यूमेंट्रीज होते थे, बहुत बड़ा, दिल्ली में कितना बड़ा, 1000 डॉक्यूमेंट्रीज का पूरा था। तो दे इनरोल्ड मी वहां पे। तो कोई ले जाता था ड्राइवर साथ में कि रोज एक देखेगा, रोज जमा करके आएगा, रोज लेके आएगा नया डॉक्यूमेंट्री। एंड दे गॉट मी एडिक्टेड टू रीडिंग, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स।
और डैड का पता नहीं एक अलग ही टाइप का था कि वो एक बुक की ऐसी समरी देते थे और उसको उस जगह पे आकर रोक देते थे जहाँ पे आपका मन होगा आप तो पढ़ना ही। तो बड़ा क्यूरियोसिटी जनरेटिंग है। ही हैड अ वे ऑफ टीचिंग आल्सो कि इमेजिन एक बार हम स्टोर पे जा रहे थे, कहीं पे गए तो नेस्ले की चॉकलेट जो आती थी उस टाइम पे बड़ी सी एक, पहले अब तो इंडिया में बनती है, उस टाइम नहीं बनती थी। ओके। तो नेस्ले चॉकलेट का मैंने रैपर उठा लिया। हाँ. तो मुझसे बोला ये क्या है? तो मैंने बोला चॉकलेट है। तो बोला नहीं और पढ़ो। तो मैंने बोला हाँ नेस्ले, तो हम कितनी बार लिखने, पढ़ो कहाँ बनती है। मैंने देखा, फिर स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। वेरी स्विट्जरलैंड। I said, I don't know. That was the natural reaction. मैंने कहा इंडिया में तो नहीं है जानता। तो like no read where it is. मैंने बोला I don't know, यहाँ तो स्विट्जरलैंड ही लिखा है। Correct. And then he says it's in Western Europe. काफी stern looking. So I said okay. And he says I expect a question. I said what? He said अगर मैंने बोला वेस्टर्न यूरोप तो तुम्हारे दिमाग में ये टर्म क्यों नहीं है कि कुछ ईस्टर्न यूरोप होना चाहिए? राइट. अगर वेस्टर्न है तो ईस्टर्न, वेस्ट बंगाल है तो ईस्ट बंगाल कहाँ है? ऐसी टर्म। वेस्टर्न यूरोप है तो मुझे आइडिया नहीं है ये सब। तुम्हें ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने पूरा ईस्ट और वेस्ट बर्लिन, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, पूरा कोल्ड वॉर, पूरा 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बता दिया। 45 इयर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, नेस्ले रैपर से शुरू करके ईस्टर्न यूरोप का। अगर ये वेस्टर्न यूरोप में है तो ईस्टर्न तुम्हारे दिमाग में, तो ही यूज्ड टू कनेक्ट बड़ा अलग वेरी यूनिक। तो दैट इज द वे आई वाज एजुकेटेड देन। पर बोलने की जहां बात आती थी खत्म, मतलब फ्रीज एकदम। मैं 16 इयर्स की एज में भी अगर कोई मुझे बोलता है कि बात कर लो किसी थर्ड पर्सन से, आई जस्ट कुडंट। आई मीन इट वाज दैट सिवियर एंड आई डिडंट इवन सी द नीड कि अपने वर्ल्ड में आप खुश हो, पढ़ रहे हो। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, एकदम से बड़ी टफ बुक्स देना शुरू कर, वोकैबुलरी का बहुत प्रॉब्लम, नहीं समझ आ रहा। तो फ्रस्ट्रेशन में आके घर में डिक्शनरी थी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स, मैंने डिक्शनरी याद करना शुरू कर दी शुरू तो करीब 6-7 महीने बाद मैंने 55,000 वर्ड्स पूरे याद कर लिए ऑक्सफोर्ड, मतलब पूरे 55,000 वर्ड्स। हाँ, अभी तक भी मैं करता हूँ सेमिनार अपने जीआरई के लिए, उसमें मैं सीधे बोलता हूँ ऑडियंस है 600 लोगों की ऑडियंस है मुझे सोच के कुछ हो रहा है। हाँ, तो 600 लोगों की ऑडियंस से मैं बोलता हूँ कि तुम बताओगे वर्ड्स और मैं बताऊंगा मीनिंग और 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स। वर्ड ऐसे लिटरली, मतलब मेरे वीडियोस हैं एक्चुअली, वर्ड वो लेके आएंगे, मैं नहीं। हाँ, ऑब्वियसली दे विल से द वर्ड एंड यू विल, मैं उसको लिखता हूँ बोर्ड पे पहले थोड़ा मिस्टेक बनाने के लिए। तो ऐसे 50, 100, 200 वर्ड्स, पहले 200 वर्ड्स तक ले लिए 200 लोग, और उसके बाद बोला चलो लेट्स सी इसको 200 के 2000 कैसे बनाते हैं। तो सब 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, तो 20 हो गए, और मीनिंग और उसका यूसेज, वो सब कुछ सारे 200 वर्ड के। हाँ तो इट्स कॉल्ड 3000 वर्ड्स इन 3 days, दैट्स द सेमिनार। बट वो इसलिए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आके पूरी डिक्शनरी आती है, कर ली थी। उसका रीजन है मेरे पास ना फ्रेंड्स, ना कोई बात करने को, ना कुछ, तो पूरा फोकस बुक्स पे, पूरी फोकस लर्निंग पे। बट सुबह 5 बजे उठ के वो 2 घंटा मैथ्स पढ़ाते थे पापा, मतलब गारंटीड था कि कुछ हो जाए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। शुरू में एक इनर्शिया होता है कि 5 बजे उठना वाज द बिगर इनर्शिया देन मैथ्स। मैथ आई वाज फाइन। तो लेकिन ही वाज रिलेंटलेस इन दैट। माय मॉम यूज्ड टू टीच मी ग्रामर और वो वर्ड्स और इंग्लिश, और शाम को रीडिंग रिलेटेड कि तुमने बुक्स पढ़ ली, अब तुम्हारे गैप्स होंगे बहुत सारे। क्यूरियोसिटी बस 2 दिन पहले जगा दी कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। Then I read it through the day, and then when you would come back, you'll fill the learning gaps. वो पूरी और बता देता था कि अच्छा इसका मतलब ये है। तो रोज की एक बुक हो गई, कभी 2 दिन में एक बुक, ऐसे तो पूरे। एंड देन फिर से आया कि 7th में तो स्कूल जाओगे, तो अब हो गया फ्रेश। अब ये हो गया कि 6th स्टैंडर्ड में बगैर स्कूल जाए आई वाज द स्कूल टॉपर्स, और वो स्कूल इतना घटिया होगा, मतलब इतना स्कूल होगा कि आप बिना जाए टॉप कर रहे हो। सोचो। तो फिर सोचा कि फिर तो क्यों ही भेजना है। And they were also okay. They were okay. As long as you are anyways performing well, how does it matter? तो फिर 7th to 12th तो I didn't go at all. And exam देने जाते थे। You never went to school. It was not a private kind of school. It was regular school that never needed attendance. So it was not an open school. No. I was studying regularly. Okay. But I never went.
only for the exams I went, but attendance was not compulsory. Okay. So that's how it was done. It was called Balwant Rai Mehta School in Delhi. Okay. अभी भी है वो. तो 12th आया तो जनरली होता है मिडिल क्लास फैमिलीज में कि क्या क्या करें. तो इंजीनियरिंग तो मतलब एक ऐसा है कि तुम जब पैदा हुए तो यहाँ और यहाँ और यहाँ ठप्पा लगा. तो और वो भी कंप्यूटर साइंस एकदम नया नया था. तो 1991 की बात कर रहा हूँ मैं. तो आई हैड टू गो इनटू दिस. तो एग्जाम होते थे इंजीनियरिंग एंट्रेंस के, 1-2 ही होते थे मतलब. तो बस वो दिया. दिल्ली में ही रहना था. दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पता चल गया था कि यहाँ अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है. तो दिया, हो गया मेरा. तो मैंने कंप्यूटर साइंस में ले लिया. अब कंप्यूटर साइंस तो आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसमें कोडिंग या प्रोग्रामिंग या कुछ भी ऐसी चीज नहीं. दैट आई कुड सेल थ्रू, बट आई कुडंट टॉक. मैं मतलब गया और इतना बड़ा कल्चर शॉक अपने ही शहर में. कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरी जगह आया होगा कहीं और इन सम अदर कंट्री और समथिंग. बट आई जस्ट कुडंट टॉक एट ऑल. मैंने एक फ्रेंड नहीं, कोई बात कर रहे हैं 2 लोग तो मैं इधर खड़े हो जाता था. वो ट्रॉमा था बहुत बड़ा. एंड टुडे आई एम अ पब्लिक स्पीकर. राइट. लुक एट द जर्नी. Well, I used to feel teachers are the worst people, and then I'm a You are a teacher. teacher today. Yeah. But जो भी आपने अभी बताया सर, उसके through what has stuck with me is, it is like, I don't know how to put it. What I've realized, especially, ऐसा नहीं, I didn't realize this earlier, but the way your parents bring you up and what backgrounds they come from and the values they instill in you, और वो आपसे क्या कराते हैं in your formative years, उसका बहुत deep impact होता है on what you can probably go ahead and do in life. Because I feel your parents had a major role. I would attribute a lot, in fact, probably 90% of your success to them and the way they've brought you up. No question. Because I know of very few people even today of that kind of rigor and that commitment towards their children of that level to, भाई उस time पे to think at that degree and level, जैसे आपने बताया, to have that discipline, routine and put in that effort and having such busy and coveted jobs themselves. I mean, genuinely, it's, I am very, very, I think, shocked, intrigued, but this is amazing. But to take that ahead, अगर I want to now ask you, since उन्होंने आपको obviously एक वो system बना दिया, you got used to it, you went into reading, vocabulary, maths, you were topping in your school without going to school. So we understand you never went to school as well. When did, you realize at a point of time while you had no friends, nobody to interact with, maybe look up to, आप बोल रहे थे आप बात नहीं कर पाते थे लोगों से. बिल्कुल भी नहीं. So did you have any role models, idols, people who you aspired to become like? What were your dreams like बचपन में कि I want to do something like this? Early on जैसे सबके सपने होते हैं, right? ये करेंगे, वो बनेंगे. How did that progress? तो वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करूं तो एक्चुअल रोल मॉडल नहीं था कि इसके जैसा बनना है. हाँ. बट कुछ डीप इन्फ्लुएंसेस जरूर थे. कि जैसे मैंने राजा राम मोहन रॉय जो काफी फेमस, उसका एक बायोग्राफी. He had done a lot of movements and हाँ, तो बहुत ही रिबेलियस बंदा था. तो उस बंदे ने आइडल वर्शिप, सती सिस्टम, करेक्ट, यस. तो ही वाज एक्सट्रीमली अगेंस्ट आइडल वर्शिप. यस. तो उसके हिंदी ट्रांसलेशन होते थे हमारे घर में. तो मतलब वो हिंदी चॉइस नहीं थी, बट वो मिलते थे उनको. तो हिंदी की कोई किताब में तो वो अपनी मम्मा के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा कोई डायलॉग था. जब वो मतलब ही वाज द राजा, एक्चुअली ही वाज अ किंग, राइट. तो उसमें था कि घर की सारी मूर्तियां तोड़ डालो, अपनी माँ को बोल रहे हैं, और वो भी 1800s में. और उसके बाद विमेन एजुकेशन, सती सिस्टम, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, वो चाहते थे कि इम्प्रूवमेंट हो. आई थिंक मोनोगमी एंड उस पे भी उन्होंने, पॉलीगैमी पे, सॉरी, बहुत सारे मूवमेंट्स पे, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए. बहुत रिबेलियस बंदा था. मतलब अपने टाइम के हिसाब से तो द मोस्ट रिबेलियस पर्सन. मतलब हिंदी में अगर ये लिखा है, जो भी उन्होंने बांग्ला में बोला होगा, लेकिन घर की सारी मूर्तियां तोड़ डालो, आज कोई बोले खड़े होके कहीं पे, तो उसका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है. उस जमाने में he could say that. तो मेरे को बहुत डीप इम्प्रिंट हो गया उस चीज का कि यार रिबेलियस होना कोई गलत चीज तो है ही नहीं कहीं से. Then I was made to read The Fountainhead, which is one of the absolute rebel books, absolute. And the Fountainhead and Atlas Shrugged by Ayn Rand. Atlas Shrugged. Okay. तो ये 2 बुक्स जो पढ़े मैंने, और आज तक मैंने इसके जैसे 2 बुक्स पढ़े ही नहीं. मतलब
और वो फर्स्ट 2 फिक्शन बुक्स थे मेरे. एंड जो At what माइंड, age did you read them, sir? 14 roughly. Okay. क्रेजी, आई मीन इतना क्रेजी. आज भी कोई पढ़े तो मतलब वो कुछ भी उठा सकता है, मतलब गन भी उठा सकता है और फावड़ा भी उठा सकता है. अब मैं और जाके गाड़ी भी पढ़ने उठा वाली हूँ सर, दोनों नहीं पढ़ी है मैंने. craziest, I mean craziest. They're absolute epitome of rebellion, दोनों बुक्स. तो उसके बाद तो ऐसा हो गया कि मतलब ठीक है. और हमारे टाइम पे जब अब मैगजीन्स आती थी तो इकोनॉमिस्ट के फ्रंट पेज पे 1984 की बात है, 10 साल, दोनों स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स वर बिकमिंग हीरोज, बिल्कुल नए नए हीरोज. नहीं, हाँ, emerging. तो उसका टाइटल, और दोनों ड्रॉप आउट. स्टीव जॉब्स वाज Correct. आल्सो कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स तो हार्वर्ड ड्रॉप Yeah, आउट. Harvard dropout. विल ड्रॉप आउट रूल द वर्ल्ड, ये इकोनॉमिक्स की टाइटल. और मैं तो रेबेलियन बैठा हूँ लेके कि हाँ. मैं डैड के पास लेके गया, बोले हाँ कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का. जाओ, डिग्री चाहिए, कल को कुछ करना, और बट पैसिवली खत्म कर दो एजुकेशन, कोई फायदा नहीं है अदरवाइज. तो आई ग्रू अप लाइक दैट एंड आई वाज इन 5th ग्रेड एंड 12th ग्रेड के बाद भी यही था कि कॉलेज साइड में हो जाएगा. तो वी वर वेरी क्लियर, मी एंड माय पेरेंट्स, कि ऐसा ही कॉलेज होना चाहिए, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं, बिकॉज यू विल डाई अदरवाइज. तुम गए नहीं कभी आप स्कूल, कभी स्कूल ही नहीं गए तो कॉलेज. हाँ, there was a lot of downside to it also. Social interaction I was zero. Right. I never talked to people. I never played sports. तब तक मतलब exercise is different. घर में हाँ. कि चलो आपने साइकिल कर ली, ट्रेडमिल कर ली, ये कर लिया, वो ठीक है. लेकिन एक स्पोर्ट्स तो टीम, बात करना लोगों के साथ, कोऑर्डिनेशन, ये मेरे लिए. तो आई वाज अ सोलो पर्सन इन जनरल. या तो एक बुक भी लिखी मैंने, $1 million सोलोप्रेन्योर. आफ्टर दैट Amazon bestseller है. Oh, बट amazing. सोलोप्रेन्योर क्यों लिखा, हाँ. वो शायद वहां से कि I don't like, I mean in my initial years I didn't You like couldn't, people. you didn't like people, I'm sure. At all. तो जब कॉलेज गया तो it was a disaster. I couldn't cope. तो जिसने टॉप किया 7 साल स्कूल, वो फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया. Oh my God. Okay. तो कॉलेज में रूल था कि 9 से ज्यादा के फेल This हो was जाए. with an engineering college? इंजीनियरिंग फर्स्ट Okay. ईयर. तो उसमें था कि 9 से ज्यादा थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 10 सब्जेक्ट, 10 मतलब 5 सब्जेक्ट और 5 प्रैक्टिकल सुन के. हाँ. अगर 9 से ज्यादा फेल है तो आपके 6 महीने आपको बाहर रहना पड़ेगा कॉलेज. तो कॉलेज एक्चुअली एक्सपेल्ड मी. और मैं मतलब भरोसा ही नहीं कर पाया कि एक तो ये और दूसरा, बट इट वाज काइंड ऑफ लिबरेटिंग, आई डोंट नो. तो एज आई वाज लीविंग द 6 months पीरियड, उस टाइम पे लास्ट डे वन गाय केम अप टू मी, सारंग नाम था उसका, अपने आप से आया. उसने बोला, तेरे को रोज देखता हूँ तो किसी से बात नहीं करता, तो क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने कहा, बताया थोड़ा सा. पता नहीं उस दिन ऐसा हो गया कि आई जस्ट टोल्ड माय स्टोरी थोड़ा सा. तो ही वाज वेरी हैप्पी कि चलो मैं भी थोड़ा ऐसे ही था, पर मैंने बदला अपने आप को ऐसा. एंड ही टुक मी वंस टू हिज प्लेस, 1-2 बार. तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट विक्ट्री इन 7 odd years कि कोई से बात की, नॉट फ्रेंड बनाया. फ्रेंड बनाया तो मेरी लाइफ का कुछ मुंह खुल गया किसी के सामने. करेक्ट. ये बहुत डिफिकल्ट है बिलीव करना कि यही विक्ट्री हो सकती है. इट्स लाइक कि आप तो जेल में रह रहे थे, पहली बार सनलाइट देखी. तो इट वाज दैट. एंड देन तो ये था. उसके बाद अब क्या करो 6 महीने. तो डैड ने बोला कि देखो तुम बात नहीं कर पाते थे, अब तुमने मुंह खोल लिया आज. अब तुम एक काम करो, तुम सेल्स की जॉब लो सीधे. तो हर हफ्ते तुम एक नई सेल्स की जॉब लो, हर महीने भी नहीं, हर हफ्ते. हाँ, एक नई दूसरी शॉप में, किसी दिन जूते की शॉप में जाओ, किसी दिन फ्रिज बेचो, किसी दिन क्रेडिट कार्ड बेचो. प्रॉपर ऐसे ब्रिक मोटर शॉप्स में जाके. इंटरनेट था ही नहीं. हाँ, तब तो नहीं, मतलब एक्चुअली नहीं था. एक्चुअली नहीं. आपको भरोसा नहीं कि ईमेल की बजाय पेपर मेल कैसे भेजी जाती है, हम नहीं सोच ही नहीं सकते. तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम सेल्स जॉब करो पूरे 6 महीना. तो मैंने बोला, क्या बोल रहे हो, सेल्स जॉब? तो हमारे यहाँ सेल्समैन आते हैं, भगा देते हैं. सेल्स की जॉब? बोला ऐसा ही. Let the door be slammed shut in your face 500 times. You will learn to have rejections. Correct. तुम्हें ये भरोसा होगा कि मुझसे सब कुछ कराया, पिज्जा डिलीवर कराया उन्होंने, मुझसे कुछ भी नहीं छोड़ा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम करो, पोर्टर का काम करो एयरपोर्ट. तुम मतलब कुछ भी करोगे क्योंकि तुम्हारा पर्सोना ही नहीं खुलेगा. I worked as a porter. I actually, वो जो ब्रिक ले जाते हैं, लिफ्ट ब्रिक्स वो थ्रो करते हैं जो, मैंने वो सब देखी. उन्हें ऑटो चलाया मैंने बिना लाइसेंस के. नहीं, he was like very relentless कि तुम्हें करना है सब. और ये जब चल रहा था उस टाइम पे, तो मुझे बोला कि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें, कोई फायदा नहीं, 6 महीने क्या करा, तुम स्टैंड अप कॉमेडी और एक्टिंग करो.
मैंने बोला एक्टिंग करो मतलब, तो बोले नहीं एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन करो, कॉमेडी की क्लासेस ज्वाइन करो। मैंने कॉमेडी, तो मैंने पूरे दिल्ली पता चला कई कॉमेडी की तो क्लास है, एक्टिंग की क्लास होती थी। बैरी जॉन जो शाहरुख खान का भी टीचर था, एक नोएडा में एक बंदा था, बैरी जॉन्स एक्टिंग स्कूल, तो वहां पे एक्टिंग की क्लास में करा दिया। पहले दिन ये ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स देते हैं ना ये लोग, पहले दिन था कि कुत्तों की तरह भौंकना है स्टेज पे 3 घंटे। What? मतलब वो डर निकालने, you have to actually bark like a dog in front of all the people. Like seriously? Actually you have to bark. Very John का। तो ये करा And people do it. People do it। I mean, तो बैरी जॉन शाहरुख खान का एक्टिंग टीचर है, तो करते ही है ना। वो तो नॉट जस्ट शाहरुख खान की वजह से, बट दैट वाज द दैट इज हाउ। तो हेजिटेशन निकालनी, आप क्या करोगे, मतलब क्या करोगे। तो हर तरह की जो फिर ये तो पहले दिन की, ऐसी हर रोज कुछ ना कुछ सिचुएशन देके कुछ, मतलब एम्बैरेसमेंट बच ही नहीं सकती। फिर ऐसे ट्रेनिंग ने हम लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्लब, एक होता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वेरी पॉश प्लेस, उसका जो क्लब था उसके मेंबर्स थे। ओके। तो मुझे बोला कि क्लब में आता है कॉमेडियन फ्राइडे को, अब उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, तुम जाके करोगे। मैंने बोला पापा क्या कह रहे हो। बोले ट्रेन करवाएंगे किसी से, तुम कॉमेडी करोगे। मतलब एक्टिंग क्लासेस और एक्टिंग में फर्क है ना। यू आर नॉट डूइंग द एक्टिंग फॉर अ फिल्म, बट क्लास ले रहे हो, ठीक है, करेक्ट। लोगों के सामने जाके कॉमेडी करना, तो मतलब कैसे क्या। But he was relentless, so he got this also out of me. अच्छे खराब कुछ भी करके कॉमेडी शोज भी करवाया ही करवाया। तो मेरा जो हेजिटेशन था दुनिया से बात करने का, एक ही था ना, बाकी नॉलेज तो बहुत थी, सब था, वो खत्म करा दिया उन्होंने पीछे पढ़ के। एंड आई वाज सपोर्ट, मैं कभी ये नहीं बोलता था कॉमेडी के लिए, मुझे लगा कि यार कैसे, बट आई डिड अ ग्रेट जॉब, आई रियली डिड अ ग्रेट। 14 शोज किए मैंने 1-1 घंटे के। इट वाज अ फिनोमिनल थिंग। हाँ, And I picked up थोड़ा दिल्ली का रस्टिक लोकल एक्सेंट, हरियाणवी, ये सब पिकअप करके, तो वो हो गया। आप सेट्स बनाते थे फिर अपने? हाँ, मतलब उस दिल्ली में सेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस खड़े हो जाओ, आपको सेट मिल जाए। नहीं एक्चुअली मतलब वो जनरली जनरली मतलब उस टाइम पर तो ऐसा होता था। क्या मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जहाँ रहते थे वहां पर एक क्लॉक टावर होते थे, घंटा घर बोलते थे उसको उस टाइम। अब तो चलेगा, आपको घड़ी देखने के लिए फोन चाहिए। दे यूज्ड टू बी क्लॉक टावर सड़क पे। तो एक बार उसकी घड़ी खराब हो गई, तो कोई मैकेनिक आया, बड़ी सी लैडर लेके चढ़ा ऊपर। इसको देखने के लिए 1000 लोग क्यों खड़े होंगे रोड पे, सब ऊपर देख। वहां पे एक बंदा चिल्ला के पूछता है उससे बहुत जोर से, देयर इज अनदर गाय, आई विल टेल यू दैट। और मैं मतलब हमारे घर के सामने ही था, तो क्यों भाई घड़ी खराब हो गई क्या? तो ये बोला ना इधर आ, उसकी नजर कमजोर है, टाइम देखना क्या ऊपर। तो ये दिल्ली के सेट्स हैं, आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। समझ गई मैं। तो फिर तो वो कॉमेडी शो के लिए तो आ ही गए होंगे लोग। हाँ, तो दैट वाज लाइक यू हैव टू बी ऑब्जर्वेशनल काफी हद तक, एंड देन यू हैव टू क्रिएट द मटेरियल। देन मैंने बुक्स पढ़ी काफी कॉमेडी के ऊपर, काफी सारे लोगों की। जूडी कार्टर एक बहुत फेमस बुक आती, तो दैट वाज दैट। एंड देन तो इंजीनियरिंग में जब मैं वापस गया 6 महीने बाद, तो उन्होंने बोला 6 महीने और रुक जाओ तुम, अब तुम 6 महीने बाद जाओगे तो ऑड हो जाएगा कि 1 सेमेस्टर तुम पीछे हो, तो 2 सेमेस्टर पीछे हो प्रॉपर। अच्छा, तो अगले साल ही ज्वाइन करो उस टाइप्स। ओके। तो इस दौरान सारंग इनवाइटेड टू मी टू हिज हाउस, एंड सारंग्स डैड यूज्ड टू बी प्रोफेसर एट एफएमएस, एमबीए के एफएमएस दिल्ली। और सारंग के उनकी भी एक फ्रेंड आए, दोनों एफएमएस के प्रोफेसर्स थे। हाँ। अब ये दोनों कुछ बात कर रहे थे, मैंने पढ़ा तो इतना था, मेरे को आता तो बहुत कुछ था, मतलब इतना पढ़ रहा। एंड देन दे वर टॉकिंग इन द अदर रूम, एंड मुझे सुनाई दे रहा, बड़ी हीटेड डिबेट चल रही थी। 1991 में इंडिया गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन शुरू की थी, कि हमने ओपन की थी, वी वर प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी एकदम, तो ओपन किया। अब उसके बाद दोनों चिल्ला रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है ये वाली, ये इसने ऑयल प्राइसेस की पूरी खराब कर दिया है, और बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं। जो रीसेंट गवर्नमेंट है उस टाइम नरसिम्हा राव गवर्नमेंट होता था, एनीवे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट को ब्लेम करे जा रहे हैं रीसेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी को। मैं रह ही नहीं पाया, वो होता है ना 7-8 साल से पढ़ रखा है, पर कहीं मौका नहीं मिला, अब बोलने की आदत हो गई है। तो आई वेंट एंड आई सेड blame Hitler for the increase in oil prices, not the current government. अच्छा,
ये दोनों ये कौन है भाई? कहाँ से आई आवाज? कौन है ये? सारंग से पूछा तुम्हारा दोस्त? हाँ बेटा आप सारंग के दोस्त हो? हाँ। मैंने बोला हाँ। आपने जो बोला आपको अंदाजा है बेटा क्या बोला? हाँ आई कैन प्रूव इट, ब्लेम हिटलर फॉर द इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। तो आओ बैठो। देवर प्रॉफ्स इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग, एक इकोनॉमिक्स और एक मार्केटिंग। तो मैंने वो 6 घंटे उनको पूरी कहानियां सुना के एंड दे वर सो इंट्रीग्ड कि नहीं ये नॉलेज तो हमको भी नहीं है। एंड से दैट जो फ्रेंड था उनका इसके फादर का, वो बोले यार चलो तो इसको तो मैं एक्सक्यूज कर दूं, ये तो मार्केटिंग पढ़ाता है, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं जो तुमने बोला। 6 घंटे मैंने पूरी वर्ल्ड की रीजन, एक्चुअली आई कनेक्टेड कि हिटलर को ब्लेम कर सकते हो आज के हायर ऑयल प्राइसेस की। पूरी मैंने कहानी प्रॉपर लॉजिकली करी। राइट। एंड दे सेड कि हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए। एंड आई वॉज 17 में मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, तो 17 एंड हाफ। और एफएमएस मतलब ऑब्वियसली मुझसे बड़े होंगे, अंडरग्रेड के बाद जाते हैं। करेक्ट। तो 22-23 साल के 22-23 साल के। हाँ। तो मुझे बोला कि वहां आके बोलना है, वहां आके स्टूडेंट्स को तुम एड्रेस करो। ओके। मेरे दिमाग में भट्टी एपिसोड की जिंदगी में कभी अपना मुंह मत करो। तो मैं तो फ्रीज ही हो गया, मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, मतलब स्टेज पे बोलना तो मॉन्स्टर पीछे चल ही रहा है। देन दिस गाय जो उन्होंने मुझे ट्रेन किया बहुत ज्यादा, उसके फादर ने बिठा के 6 महीने लग जाए, बट इस तरह का नॉलेज सामने नहीं जाए दुनिया के। नहीं, ही वाज लाइक डैड से भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड पूरा, कि नहीं मैं कॉलेज से छुट्टी ले लूंगा 6 महीने, पर तुम मेरे स्टेज पे जाके बोलोगे जरूर। नहीं ट्रेन की। तो मेंटर्स का बहुत, हाँ, I was just gonna say, he would have played a very pivotal role. I mean, what was the need for him? Yeah, what did he even get out of it? Nothing really. तो that was one thing कि मैंने हमेशा सोचा है कि मैं कभी भी कोई प्रोग्राम चलाऊं तो give more in value than you receive in price। मतलब मेरा जो Know the World जो काफी सिग्नेचर और काफी बड़ा प्रोग्राम है, which has always offered free of cost for this reason। तो ये हुआ। उसके बाद हार्वर्ड तो हमेशा से ही वो स्टैम्प पे ही था कि हार्वर्ड। So I did so many internships in sales, extracurriculars में I did comedy shows, I did many other things। तो resume बहुत solid। 95 आ गया प्री फाइनल ईयर और ऑलमोस्ट फाइनल ईयर ही था। तो तब आगे की जीमैट देनी पड़ेगी, तो और पेपर पेंसिल होता था, जीमैट वो ऑनलाइन नहीं होता था। तो सेंटर पे जीमैट का डिसीजन आपने किस पॉइंट पे लिया था कि देना है? बचपन से ही ये था ना कि हार्वर्ड का तो था, तो हार्वर्ड जाने के लिए तो देना ही पड़ेगा। बट दैट डिडंट चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? नथिंग? Never. No other thought? Because generally, why I'm asking you this, when you talk to people as a career coach, I talk to so many people, right from the age of 18 to 45. After doing something, आपने 2 साल उसमें जी जान जी तोड़ मेहनत भी लगा दी, people still think of यार बैकअप में ये रख लेते, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। पेरेंट्स को तो था थोड़ा सा, वो थोड़े प्रैक्टिकल थे, मेरे को तो जुनून था। मतलब मेरे तो you knew this is the I could get to Harvard। अगर बोले जाए कि 100 लोगों का मर्डर करना है फिर हार्वर्ड जा सकते हो। मैं 100 लोगों को मर्डर करके जा सकता था, या खुद का हाथ काटना है, एक हाथ से जाना है, नो चले जाता। मतलब इट वाज दैट जुनून। तो जीमैट दिया तो उसमें तो मेरे को पढ़ना नहीं पड़ा बचपन से ही। मतलब आई एम श्योर यू वर ट्रेन्ड फॉर इट। हाँ, आई वाज ट्रेन्ड फॉर ओलंपियाड लेवल मैथ, आई वाज ट्रेन्ड फॉर एवरीथिंग। वोकैबुलरी पूरी डिक्शनरी याद है, ग्रामर 250 बुक्स पढ़वा दी मॉम ने बचपन से ही। मतलब और मुझे शौक था पढ़ने का, रीडिंग सब चीजों का, मुझे इंटरेस्ट था। मेरे को कोई सब्जेक्ट में कभी ये नहीं लगा कि ये नहीं करना। वो मतलब कुछ ऑकल्ट साइंसेस की भी बुक लाके दे दें तो मैं वो भी सीख जाऊं कि ब्लैक मैजिक कैसे होता है, वो था दिमाग में कि कुछ भी हो। एक बुक हमारे घर में थी, उसका नाम था कैपिटल पनिशमेंट सिस्टम्स ऑफ द लास्ट 1000 years इन द एंटायर वर्ल्ड। कि मारा कैसे जाता था लोगों को सारी दुनिया में। मतलब मैं उसके ऊपर भी एग्जाम दे सकता था। कुछ भी, मतलब कुछ भी था। You have read everything, I feel. ऐसे वो एक तो ड्राइंग रूम कल्चर भी होता है दिल्ली में कि कुछ बुक्स पढ़ने के लिए और कुछ बुक्स कभी पढ़ने के लिए नहीं, दिखाने के। So they used to go to the quaintest of book fairs in the world, around the world, and they used to get books that nobody would have even heard of। था उनको थोड़ा बड़ी बुक्स आती है, इतनी बड़ी खोलने के बाद तो बुक ऐसे हो जाती है। And they used to get those books quite a lot। पढ़ते वो वाली तो वो लोग भी नहीं पढ़ते थे, पर उसमें मैं तो वो भी पढ़ लेता।
बेटर। My God. तो हाँ, तो हार्वर्ड के लिए जीमैट आया तो 95 में वो 4 बार होता था इंडिया में। हाँ। तब तो सेंटर पे ही जाके देना Correct. पड़ता था आपको, और वैसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं, हाँ, मतलब प्रॉपर proper, yeah. तो दिया मैंने, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जीमैट मुझे बहुत ही आसान लगी, मतलब उस टाइम की। अभी तो जीमैट मुझे भी लगती है कंपेरेटिव इनफ, बट इट वाज वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक। तो Okay. मेरा तो 800 आ गया पूरा उसी साल। Full. हाँ, पर पेरेंट्स ने बोला बेटा हार्वर्ड के अलावा भी तुम्हें कहीं नहीं जाना, कम से कम दूसरे 20 स्कूल सोचो। मैंने कहा नहीं, कोई कहीं अप्लाई नहीं करूंगा मैं। और तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे उनको मालूम था मुझे कैसे। ये जीमैट तो बड़ी इजी थी, अब तुम जीआरई और कैट में नहीं ला पाओगे इतने मार्क्स। अच्छा। तो मैंने बोला कैसे नहीं ला पाओगे, वो हो गया। हाँ। तो उन्होंने जीआरई कैट भी दिलवा दिया दोनों में। कैट में तो परसेंटाइल आता ही नहीं था। अच्छा, there was no percentile. ABCL 4 IM होते थे, अगर कॉल आ गई तो आ गई। अगर A से कॉल आ गई मतलब यू आर काइंड ऑफ 99.95 या 100। Okay. तो तब 2002 में परसेंटाइल शुरू हुई है कैट में, उसके पहले नहीं आती। Okay. तो आई रोट कैट 95 और जीआरई उस टाइम होता था आउट ऑफ 2400, तो Okay. वो पूरा आ गए मेरे। 2000 मतलब 240 से होता 240. था। हाँ, तो आई गॉट, उसमें 3 सेक्शन होते थे, आई गॉट। मतलब एक्चुअली रीजन ये नहीं था कि आई हैड प्रिपेयर्ड इन दैट मोमेंट की जीआरई की तैयारी कर, लाइफ लॉन्ग वाज स्पेंट इनटू प्रेपिंग फॉर विदाउट रियलाइजिंग That you are prepping for it. व्हेन आई वाज लर्निंग वोकैबुलरी आई डिड नॉट इवन नो जीआरई जैसी कोई एग्जाम होती है। Correct. मुझे नहीं पता। हाँ. तो कैट के लिए एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने फाइनल ईयर में, करियर लॉन्चर होता था। Career launch. हाँ. तो करियर में, क्योंकि कैट नहीं था मुझे आइडिया, जीमैट जीआरई तो क्योंकि बचपन से वो फॉरेन हाँ. एजुकेशन का था तो मेरे को आइडिया था। तो मैंने वहां ज्वाइन किया। पहले मॉक टेस्ट में टॉप, और उनके सेंटर होते थे 10-10, मतलब जयपुर सेंटर, लखनऊ सेंटर, हाँ. चेन्नई सेंटर। वो सेंटर का ऑल इंडिया रैंक निकालते थे, उसमें भी फर्स्ट मॉक टॉप, सेकंड मॉक टॉप, थर्ड मॉक सेकंड हाई, फोर्थ टॉप, फिफ्थ। तो 5 में से 4 मॉक्स में मैंने टॉप किया उनके मॉक टेस्ट। तो उसका जो चेयरमैन था कंपनी का, उसने बुलाया मुझे। उसने बुलाया कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने क्यों बुलाया तुमको। मैंने कहा यू कैन गिव मी योर चेयर इफ दैट इज योर थॉट। He was from Bangalore. मतलब तुमने, उसने बोला तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। मैंने सत्यनारायण, तो मैंने बोला यू कैन ऑफर मी अ चेयर, आई वुडंट माइंड। That's the level of confidence you need. नहीं, मुझे nothing to lose. सही बात है. It's like वो तो नहीं हो पाएगा, इंटर्न बन सकते हो। बोलो काम करना है हमारे साथ, तो बोलो we are very happy with your performance. I mean why not? I mean once you finish your college, come here. मैंने कहा you finished your college and you went to IIM and you want me to come to career launcher. Why should I not go to Harvard or IIM? Tell me. बोले yeah, I mean that we'll see जब तुम्हारा हो जाएगा। 6 महीने तो काम। I joined that also. अब सबसे बड़ा ट्रेजिक मोमेंट था कि 1994 तक हार्वर्ड में विदाउट वर्क एक्स जाते थे। आज भी आईएम में जैसे कैट दो, आपको वर्क एक्स कंपल्सरी। तो हार्वर्ड में 94 तक कंपल्सरी बिल्कुल ही नहीं था, कभी भी। इंटरनेट था नहीं। और अगस्त में हम अप्लाई करते हैं हार्वर्ड के लिए अगले साल की। राइट। तो अगस्त 95 मेरा जो कॉलेज ईयर था, फाइनल ईयर। 96 में आई वुड हैव फिनिश माय ग्रेजुएशन, और उस हिसाब से 96 आई वुड हैव जॉइंड। तो 95 में जब मैं अप्लाई कर रहा था, जुलाई में ये रूल चेंज हो गया कि 2 साल का वर्क एक्स कंपल्सरी है। और रूल चेंज हुआ तो इंडिया तक आते आते तो 6 महीने लग जाएंगे खबर को। मतलब हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी आएगा तो 6 एडिशंस के बाद आएगा। क्योंकि इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ न्यूज फॉर इंडियंस उनके हिसाब से। और वेबसाइट होती नहीं थे, मेल होती नहीं, देयर वाज नो इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मैंने अपनी फैन फेयर में पूरे एसेज लिखे, एसओपी लिखा, रिकमेंडेशंस लिए, प्रोफाइल तो था ही 800 स्कोर के साथ। तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने कहा अब ये तो बनता ही है, अगस्त में भेज दिया एप्लीकेशन। और मुझे लगा कि अगर इंटरव्यू इनवाइट आया तो इंटरव्यू का थोड़ा देख ले। तो देयर यूज्ड टू बी वन कंसल्टेंट इन मुंबई, ओनली वन। पूरे इंडिया में इस पूरी कहानी के लिए एक कंसल्टेंट होता था। अच्छा। करण गुप्ता, बॉम्बे में था वो। तो मैं गया उसके पास कि सर थोड़ा ट्रेन। उसने एप्लीकेशन देखी, खड़े हो जरा, मुझे बोलते ये एप्लीकेशन सबमिट की हार्वर्ड में। मैंने कहा हाँ। बोलता मेरा बेटा होता ना तो मैं जूते मार देता उसको, अभी खड़े। वो हिंदी में एकदम शुद्ध देखता। मैंने बोला सर क्या हो गया, क्या कमी है? बोला मैं तुमको बेटा ही बोल देता हूँ। बेटा हार्वर्ड में पिछले महीने वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी हो गया है।
ओह माय गॉड। और आपको उस मोमेंट तक आइडिया ही नहीं था? मुझे तो हाँ। उसने इतनी गालियां मारी मुझे, इतनी, पहली नहीं था वो, पहले भी हो चुका था भट्टी वाला, फिर से टीचर्स खराब होते रिपीटिंग ऑन रिपीट। इतनी गालियां, मतलब तुम कैसे, तुमको आइडिया ही नहीं हो, तुम अपने मस्ती में अप्लाई कर दिया है। मैंने कहा क्या मैं अकेला हूँ जिसने क्या? बोला हाँ, और बाकी लोग मुझसे पूछे बगैर इंडिया में अप्लाई नहीं करते, कोई नहीं करता। बोले मैं अगर हूँ, मुझसे पूछे बगैर कोई अप्लाई कर दे तो उसको पहली बात तो ये गुस्सा होगी मेरे पास तो आया नहीं, आप क्यों? एंड इज लाइक यार, बोले चलो वेट करो, जाओ घर पे आएगा रिजेक्शन 1 महीने में, जाओ जाओ घर जाओ, वेट करो। आई वॉज नॉट इवन श्योर, तुम्हें कैसे पता करूं? तो मैंने फिर से वो फिजिकल मेल लिख के कि सच है क्या, तो उनका जवाब आने से पहले रिजेक्शन आ गया कि द रूल्स हैव चेंज्ड, आई एम सॉरी, अप्लाई 2 years लेटर मिनिमम। सोचो, मतलब 10-15 साल से वो ड्रीम चल रहा है, उस चक्कर में आप पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, वही 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 वही। और इस चीज की वजह से कि 1 महीने पहले रूल चेंज हो गया, इंटरनेट नहीं है, न्यूज आपके घर पहुंच नहीं सकती, कोई जगह पब्लिश नहीं हुई। सो दिस वाज द बिगेस्ट एंटी क्लाइमैक्स, मतलब उस तरह का इट वाज लाइक अ बॉम्ब, मतलब कुछ। पर वो पेरेंट्स की जो विजडम थी थोड़ी, वो काम आई कि चलो। How did you take it at that time? आपका first reaction like? फर्स्ट रिएक्शन ही, मैं तो 3 महीने, मतलब मुझे पता ही नहीं, यू कुड हैव हिट मी डाउन विद अ फेदर, तो यू कुड हैव नॉक्ड मी कंप्लीटली। इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट ईयर चल रहा था उस टाइम पे, और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट मेरे को नहीं पता उसमें हुआ क्या, किसने प्रेजेंटेशन दी, क्या हुआ, मैं पास हो गया बस इतना पता। आई वाज लाइक इन अ हेज, आई हैड नो आइडिया, मतलब द वर्ल्ड वाज स्लैम्ड इन माय फेस, रियली। बड़ा मुश्किल से फिर कैट का टाइम आया फाइनली। ये तो ये इंटर्नशिप्स जो करियर लॉन्चर में पहले हो गई थे, रिजेक्शन के बाद आया लास्ट, क्योंकि वो दिसंबर में आता है रफली। तो रिजल्ट आया, कैट भी दिसंबर में होता था उस टाइम, नवंबर में होता था, हमारे टाइम पे दिसंबर में होता था। तो पेरेंट्स ने बोला कि भैया देख लो, ये तो हो नहीं पाया। उनको भी शॉक लगा हुआ था, किसी को भी नहीं। तो मैं लिखने चला गया कैट, उसमें परसेंटाइल नहीं आता था, उसमें आपने लिख दिया, फिर 1.5 महीने आप वेट कर रहे हो, क्योंकि कोई आज भी परसेंटाइल वैसे इमीडिएटली नहीं आती। Finally, A, C, and L, only 4 IIMs used to be there, ABCL. ACL sent me invites, interview invites. Okay. तो A का मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, CL के लिए फिर मतलब हुआ कि नहीं क्लियर, मैं गया था इंटरव्यू, बट आई डिडंट बॉदर, रिजल्ट ही नहीं देखा मैंने उसके। Okay. तो A में हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो दैट वे आई वाज वेरी वेरी अनहैप्पी इवन विद IIM अहमदाबाद टैग कि यार कहाँ जाने को बोल दिया। डेली यू आर रीडिंग HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, थिंकिंग की केस स्टडी करेंगे इस प्रोफेसर के साथ, आपने अलग दुनिया ही बना ली होती है। बहुत ही। और IIM का तो मतलब मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था, मैंने कभी कैट वैट सोचा ही नहीं था। राइट। कॉलेज में स्टूडेंट्स कैट का बहुत तैयारी कर रहे थे, पर मेरे दिमाग में नहीं था। तो मैं गया तो मुझे पसंद नहीं आया कुछ भी, और इसलिए नहीं था कि आपने अटेंड किया? हाँ। ओके। तो इसलिए नहीं था कि IIM एक खराब जगह है, पर मेरा जो मन में बन गया था, हाँ, एक विजुअल की है, उसके कंपैरिजन में केस स्टडी अप्रोच नहीं था यहाँ पर, काफी थ्योरेटिकल था, वहाँ काफी ज्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड, काफी ज्यादा। तो मुझे पसंद नहीं आया। मतलब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की इलेक्टिव लेते हैं लोग सेकंड ईयर में, तो उसमें होता है फर्स्ट ईयर में भी आप जाके देख सकते हो, बैठ सकते हो। तो IIM की एक इलेक्टिव क्लास का एक फर्स्ट डे आई वेंट एंड आई सेड कि कैसा होगा सेकंड ईयर अगर एंटरप्रेन्योरशिप से। वो प्रॉफ ने पूरा करियर 2 बिजनेस स्कूल्स में बिताया था। ही हैड बीन एन एकेडमिक एंड ही वाज टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप। कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखो। नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन डेफिनेशन से क्या करेगा इंसान को, आप बताओ। नहीं एक्चुअली तो मुझे टर्न ऑफ हो गया, ये नहीं हो पाएगा। आप कर लो जो करना, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। पर मैंने पेरेंट्स से बात नहीं की इस बारे में, मुझे पता था कि ये अभी इस हालत में नहीं है। तो हाँ, what was the good thing that I had done so many jobs, तो I had saved my own money and my parents were okay। फीस बहुत ही कम थी, 11,000 पर ईयर फीस होती थी IIM अहमदाबाद की, वो सस्ता होता था, बहुत सस्ता। FMS की फीस तो 2 या 3 हजार होती थी उस टाइम, आज भी बहुत कम है, बट बहुत ही सस्ता होता था। तो मैंने मन बना लिया, अब मैंने सोचा मैं पढ़ूंगा नहीं, पर जॉब तो मुझे मिलेगी नहीं, सब मैं क्या करूं। सोचा तो यही था कि ये भी अच्छा ही होगा, एशिया का नंबर 1 स्कूल था तब, तो अच्छा ही होगा। अब नहीं निकला वो। तो
एंड आई वाज लाइक मैं क्लास में नहीं जा सकता, मेरे से मतलब I just can't do this. You just can't push myself to attend a class like this. लिखो definition on नहीं, बहुत खराब, बहुत ही खराब। मेरे को जो आदत पड़ गई थी उसके कारण। तो 47 डेज तो ड्रैग किया मैंने किसी तरीके से। 47th डे तो मैंने जाके डीन से बोल दिया कि सर ये नहीं हो पाएगा। मतलब 2 महीने भी नहीं। हाँ, मैंने कहा सर ये नहीं। मैंने क्लास जाना तब भी छोड़ दिया था, तो वो बोलने लग गए बार बार अटेंडेंस होता है वो बहुत, तो क्विज में मैं जा नहीं रहा हूँ सब कुछ। तो डीन ने बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं अटेंड कर रहा, अब तो हटा दो मेरा नाम। वो IIM वाज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD, तो उससे अप्रूवल आने में कि ये बंदा छोड़ रहा है 2 साल लग जाते हैं। तो ऐसा सी कोई को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो स्नेल मेल पे सब काम चल रहा है। उसी ईयर में इंटरनेट थोड़ा आया था इंडिया, लाइक टेक्स्ट बेस। 96 जैन में थोड़ा बहुत इंटरनेट की कहीं कहीं शुरुआत हो गई। तो मैंने बोला मुझे नहीं करना है, और मैं तो छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके हाथ थोड़ी जोड़ रहा हूँ कि मुझे ले लो। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे नहीं रहना IIM में, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं, इट विल क्रिएट अ स्कैंडल, आपने मीडिया को नहीं बोलना है कुछ। मैंने कहा मीडिया से मेरे को क्या करना है यार, मीडिया कहाँ से आ गई? बोले नहीं, मेरी जॉब चली जाएगी कि आप कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, मैं मिनिस्ट्री को आंसरेबल क्यों हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम ही है, ऐसी करके। मैंने बोला सर मुझे जाना है, आप मुझे लीविंग सर्टिफिकेट दे दो। तो बोले तुम्हें लीविंग सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, तुम्हें 2 साल बाद बोल देंगे भाई इसने अटेंड नहीं किया, ही वाज मेडिकली सिक, हम देख लेंगे। क्योंकि HRD मिनिस्टर के ऊपर ये जाएगा और उनको पता चल गया, तो they'll pull me up, and in this I have no fault. He says कि मेरी क्या गलती, IIM तो ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं फिर। तो मैंने सोचा यार, मैंने करियर लॉन्चर में एक बार सोचा था कि यार यही बिजनेस अगर मैं अकेले करूं, ये लोग जो कर रहे हैं पूरा कैट ट्रेनिंग, तो कैसा। तो दिमाग में आया कि आई कुड डू अ कैट ट्रेनिंग हियर। अब there used to be a Gujarati newspaper that was the only newspaper people read in Ahmedabad. English का कोई मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया आता था। तो जब मैं डीन के पास गया लेके, तो उनका तो ये रिएक्शन था कि मेरी नौकरी छुड़वा दोगे तुम, मेरे से नहीं होगा, मतलब तुम रहो 2 साल, तुम्हें नहीं अटेंड करना तुम मत अटेंड करो। And that this dean became one of my closest mentors and friends later. So it happened. Okay. The hostility actually how things change. Yeah. But that's for later. It's coming up. So I sat down and मेरे दिमाग में जब मैं करियर लॉन्चर में था तभी आया था कि अगर IIM के बाद भी किया तो ये बिजनेस क्या बुरा है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं। They were huge. They were huge तब भी। तब भी they were huge. मतलब वो सत्या जो चेयरमैन था बैल्कनी में खड़ा होकर बात करता था जब 5 सेंटर थे कि मुझे 500 सेंटर खोलना है, मतलब उसकी डिविजन थी उस तरह। तो मुझे था कि आई कुड डू द सेम आफ्टर IIM बिकॉज दे वर ऑल IIM ग्रेड्स, ऑल ऑफ देम। करियर लॉन्चर वाज कॉल्ड, हाँ, उसकी टैगलाइन होती थी एन IIM एलुमनाई बॉडी, करियर लॉन्चर एंड IIM एलुमनाई बॉडी, दैट यूज्ड। तो आई वेंट देयर, अब बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा, डीन ने बोला छोड़ भी नहीं सकते, तो मैंने सोचा ठीक है मैं क्या करूं। तो I couldn't write IIM a dropout because technically I wasn't a dropout, I hadn't left. तो मैंने वहां पे एक गुजराती न्यूज़पेपर आता था, दैट वाज द ओनली न्यूज़पेपर दैट वाज रेड। टाइम्स ऑफ इंडिया की 800 कॉपीज बिकती थी और उसकी बिकती थी 5 लाख। मतलब रेशियो देखो, कोई इंग्लिश पढ़ने वाले लोग, इंग्लिश सुनने बोलने वाले लोग 0 ऑलमोस्ट, राइट। और US जाने का बहुत शौक फिर भी, मतलब अनबिलीवेबल लेवल पे। तो मुझे लगा कि यार यही कर सकते हैं, तो न्यूज़पेपर ऐड, क्योंकि इंटरनेट नहीं थी, अभी समझाना बार बार पड़ता है, आई नो न्यूज़पेपर ऐड कौन लेता है। तो वो फ्रंट पेज एड्स तो बहुत कॉस्टली होती है ना, मैंने सोचा क्लासिफाइड, और सब लोग पढ़ते थे उस टाइम में, कुछ आता था क्लासिफाइड एड, छोटे छोटे। तो उसमें क्लासिफाइड का एक पूरा पेज होता था, उसमें स्ट्रिप ले सकते थे आप, छोटी बड़ी सब कुछ। तो वर्टिकल स्ट्रिप द लॉन्गेस्ट यूज्ड टू बी 52 सेंटीमीटर, तो उसकी जो एक कॉस्ट होती, मैंने उसको डायगोनल कर दिया। मैंने बोला कि दिखेगा लोगों को, तो जो एड पूरा न्यूज़पेपर है उसमें एक पेज आपने खोला और डायगोनल ऐसा एक स्ट्रिप एड है आपका, कोई भी पढ़ लेगा, और वो लोग पूरा पढ़ते थे उस टाइम पे, वो पूरा गुजराती न्यूज़पेपर होता था। मैंने डायगोनली लिखा सिर्फ कैट ट्रेनिंग बाय एन IIM अहमदाबाद स्टूडेंट। अच्छा, बस मुझे लगा कि 7-8-10 लोग आ जाएंगे, चलो पॉकेट मनी निकल जाएगी, तब तक आई विल हैव टू फिगर आउट। आपने ऐड कब किस एज पे पब्लिश करवाई थी? That was 1996 July, because June I joined, very beginning of June I joined. हाँ. तो जुलाई एंड में करीब, तो ये 47 डेज के बाद जब डिसाइड हुआ,
राइट आफ्टर दैट। हाँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मतलब ही नहीं, डीन के पास जाने के बाद वो भी रिजॉल्व नहीं होगा। तो आई सैट डाउन दैट डे कि क्या करना है, और मुझे एड्स कैसे देते हैं वो आइडिया था, क्योंकि करियर लॉन्चर में मुझे वो काम कराया हुआ था उन्होंने। करेक्ट। तो मुझे मालूम था, तो मैंने कॉल किया। तो फोन उठाते थे गुजराती में, मैंने बोला नहीं आती, तब वो शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि आप क्या इंग्लिश में ऐड दोगे? मैंने कहा हाँ इंग्लिश में ऐड दो। तो पढ़ेगा कौन? तो मैंने बोला नहीं, मुझे इंग्लिश में देना, मेरी ऑडियंस पढ़ ली। अच्छा ठीक है, जो जमे आप करो। तो किया मैंने, मुझे लगा कि यार क्या है। तो इट्स वेरी 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 क्रेजी कि उस टाइम पे मुझे लगता था 10 लोग आ जाएं पढ़ने। जनरली फी होता था 5,000 पर मंथ पर ईयर। कैट का ट्रेनिंग का फी 5,000 के आसपास होता। मुझे लगा 50, हाँ मतलब पढ़ाते 4-5 महीने थे, तो 50,000 हो गया तो मेरे तो आराम से निकल जाएगा। मतलब IMA करने के बाद 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी तब तो, उस टाइम। तो मुझे तो समझ नहीं आया। एक मोबाइल फोन मैंने एक दिन पहले लिया कि अब फोन आएंगे, तो तब मोबाइल उसी टाइम पे मोबाइल शुरू हुआ था इंडिया में, उसी टाइम पे। इनकमिंग का भी 10 रुपए लगता था 1 मिनट। मेरा फोन बजना ही बंद ना हो, मतलब 3,900 people inquired 3,000 from that one ad. Wow. More than 3,000 wanting to go to the US, not writing the CAT. But CAT कोई GRE GMAT पढ़ाने वाला ही नहीं वहां पर, और उनका क्रेज कोई आया। पर आपने तो CAT का ऐड दिया था। फिर भी क्योंकि CAT पढ़ा सकता है तो वो भी पढ़ा सकता है शायद। अच्छा हाँ। तो IIM का मैं पूरा बताता हूँ। 22 years की हिस्ट्री में पूरे गुजरात स्टेट से IIM अहमदाबाद कभी कोई नहीं गया था। 22 years of history of CAT, 1996 CAT होने वाला था। 22 years पहले 1% गुजरात से IIM अहमदाबाद गया। गुजरातीज को IIM से लेना देना ही नहीं कोई, मतलब वो दे वांट टू गो टू द US। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पहले टेलीफोन डायरेक्टरी आया करती थी, अब तो नहीं आता कुछ भी ऐसा। इतनी मोटी किताब आती थी कि दुनिया उस शहर के हर पर्सन का नंबर उसमें अवेलेबल है। न्यूयॉर्क्स टेलीफोन डायरेक्टरी, द लार्जेस्ट अकरिंग सरनेम वाज पटेल इन न्यूयॉर्क। गुजराती इसको मतलब अमेरिका जाने का कितना। पटेल वाज द लार्जेस्ट अकरिंग सरनेम इन न्यूयॉर्क्स टेलीफोन डायरेक्टरी। तो वो तो आके कि तमें कुछ भी पढ़ाओ, कुछ नहीं, बस भेजी दो भेजी। जैसे पंजाबियों का कनाडा का है। हाँ दैट काइंड। कनाडा वगैरह भी नहीं, वो तो यूएस। तो मैंने बोला लेकिन ये तो नहीं, वो तो सब हमने पता कर लिया, वो बराबर ही सिलेबस है सब। तो कैट की क्लास में कैट वाले स्टूडेंट GMAT और GRE तीनों पढ़े। दैट एंड आई हैड टू हायर एन ऑडिटोरियम बिकॉज 1,000 लोगों की 3 बैच दिन में, 1,000 एंड आई वेंट क्रेजी। वन पर्सन जिसको मतलब ये था कि 10 लोगों को पढ़ा भी दोगे तो ठीक है, वो 3,000 3,500 लोगों को हैंडल। And I just don't know. I have no idea till now how I managed it. August my batch started. August, September, October I taught. November में थोड़ी practice. At that time, public speaking, that fear had gone by that time. वो तो college में ही वो चला गया था। जब FMS में जाके speech दिया, अच्छा that I didn't tell you. So I did actually go after 6 months to FMS. Okay. And I gave a 3-hour long speech, whereas the promise was 15 minutes. ऐसा होता है ना, एक डैम का पूरा बंद करके रखा है और एकदम से floodgates. It was like that. It was crazy. I was very raw, but I think I got that confidence. तभी तो मैंने सोचा पढ़ाऊंगा। अगर ये सोच रहे हो आप कि आप पढ़ाने वाले हो कैट के लिए, तो पब्लिक स्पीकिंग तो मतलब डर तो गया फेस करने का। It may not be called public speaking, it was teaching, but still. और जब कैट हुआ दिसंबर में, तो पहली बार 9 people got into IIM Ahmedabad after 22 years from Gujarat. From Gujarat. In the first year, I had a Harvard selection, MIT selection, and a Stanford selection. My God. First year. Wow. एक, not more. हाँ, but still. हाँ, एक हार्वर्ड, एक। तो पब्लिसिटी की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट ईयर तो मतलब और छोटे लेवल पे तो सब कॉलेजेस जितने यूएस के जितने कॉलेज, मैं एडमिशंस का नहीं करता था काउंसिल। हाँ. फिर भी मतलब दैट वाज ग्रेट कि करा दिया, GRE करा दिया, GMAT करा दिया। Correct. और it was just a crazy operation. So it was called Dream Careers. That is what I had started the company as. Previously. अहमदाबाद में उसी का नाम वही था। अच्छा। तो my dean came to know after that कि ये चल रहा है। तो मैंने बोला सर आपने बड़ी कृपा की, मेरे को नहीं तो ड्रॉप आउट लिखना पड़ता। हाँ। अभी मैं स्टूडेंट लिख के काम चला रहा हूँ, 2 साल यहीं रहूंगा, कोई बात नहीं। तो उसने बोला अगर मेरे बेटे को पढ़ना हुआ तो पढ़ाओगे?
मैंने कहा हाँ सर पढ़ा देंगे कोई बात नहीं, पर सिलेक्शन हो या नहीं उसकी गारंटी नहीं। He was like that. Yeah. So that ran for another year. फिर I had also gotten a placement while I was in college. तो मुझे नहीं, तो कॉलेज में तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा ना। But when you were not attending it, you were still eligible to sit. Because attendance was not compulsory, so it is So not. you would give the exams. I would give the exams. No, I clear. How would I go to IIM without a degree? नहीं वही मैं I सोच had a रही थी. degree, proper degree. Okay. डिग्री नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, वहां अच्छा, पे वो नहीं 12th तो हुआ। किया ना, हाँ correct. तभी कॉलेज में जा पाऊँ। Correct. तो एफएमएस में ही जब मैं गया था तो वहां पे एमबीए के प्लेसमेंट के लिए देयर इज अ कंपनी britannica.com जो इंसाइक्लोपीडिया बनाती है, तो दे वर कमिंग फॉर द ऑनलाइन थिंग दैट वाज अपकमिंग एट दैट टाइम। Yeah, they're digital. वो वेरी वेरी प्रिमिटिव था। तो Correct. ब्रिटानिका होता था इंसाइक्लोपीडिया, britannica.com वाज द वेबसाइट। तो दे वर Okay. लुकिंग फॉर पीपल इन इंडिया, Okay. चीफ कंटेंट ऑफिसर इंडिया ऑपरेशंस। मैं At अकेला that था, time. बट आई वाज द ओनली पर्सन, नाम की बात है। हाँ. I was chief and I had to do the hiring, so I did that। तो मैंने वो जॉब भी ले ली साथ में कि कितना ही टाइम जाए, तब शुरू में सोच के कि यार कितना ही टाइम जाएगा मेरा, मतलब ये तो 10-15 लोग पढ़ने आएंगे। आई पिक्ड अप दैट आल्सो, सो आई वाज डूइंग 2 थिंग्स। 1 घंटे में वो कर रहा था, दैट वाज लाइक द फुल टाइम जॉब, काम उतना होता नहीं। एंड दिस 3.5 years I ran this, and it was one of those times when you just don't remember, आपको कुछ समझ नहीं आता है कौन सी फ्रेंड्स you would realize कि तुमने जो पिछले 1 साल में काम किया होगा, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होगा कि हाउ द वर्क इज हैपनिंग। मतलब वो उसको ऑटो पायलट भी नहीं बोल सकते, ट्रेडमिल भी नहीं, वो जोश, वो एड्रेनालिन, पता नहीं क्या करा देता है, वो पागलपन होता है कि आप 2 घंटे सो रहे हो तो भी चल जाती है बॉडी, पता नहीं क्या होता है। करेक्ट। एंड इट वाज दैट काइंड ऑफ जुनून। आई जनरली हैव अ फिगर, एक 4 सर्कल्स का, कि ये जब वर्क आपको देता है 4 चीजें तो आप फुलफिल्ड फील करते हो। तो 1 is obviously skill, the other is passion, the third is impact, and the fourth is money। कि आपकी स्किल है, आपका पैशन भी है, आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, मन से इम्पैक्ट, या आई वांट टू चेंज समवन्स लाइफ एंड द मन। तो इस वेंचर में प्रॉब्लम हुआ कि आई हैड all the skill in the world, I had cleared the CAT, GDVD सब clear, interview clear सब, क्योंकि जिसने IIM अहमदाबाद क्लियर किया वो तो CAT पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो स्किल वाइज एंड आई लव्ड टीचिंग एनीवे, मतलब काफी हो गया। I had passion for teaching, I had extreme amount of passion, स्टेज पे खड़ा कर दो तो I would just go on। Right. Money was insane, it was unheard of, मतलब I became a dollar millionaire in first two months। इस तरह का पागलों जैसा My God. उस टाइम की बात, इट वाज क्रेजी। मतलब जितना आपको रिफ्यूज ही करना पड़ रहा है कि जगह ही नहीं है, कहाँ जमीन पे बैठने को तैयार हैं लोग पढ़ने के। तो एंड बट आई डिड नॉट हैव दिस इम्पैक्ट माइंडसेट कि मैं सुबह इसलिए नहीं उठता था कि मुझे किसी को हार्वर्ड भेजना है, मुझे किसी को IIM अहमदाबाद, मुझे बस था कि मुझे स्टेज पे खड़ा होना, पैसे की भी टेंशन नहीं, आई नहीं, आई लव बीइंग ऑन स्टेज। बट यू रियलाइज दैट व्हेन यू डोंट हैव दैट माइंडसेट ऑफ इम्पैक्ट, आपका इतना ही पैशन होती, 2 साल 3 साल वो खत्म सस्टेन नहीं होता, हाँ वेयरिंग ऑफ होने लगते हैं। तो आई रियलाइज कि वो नहीं चल रहा था मेरा ठीक से। तो 1999 आते आते तो आई हैड काइंड ऑफ वॉर्न माई सेल्फ आउट दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। तो ब्रिटानिका यूज्ड टू कॉल मी टू लंदन एवरी मंथ और एवरी 2 months, उनका हेड ऑफिस। हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क विद देम? फुल 3.5 years। 3.5 years यहाँ पे भी वहां पे भी बराबर, एक साथ। हाँ। तो द साइड हसल आपने तभी शुरू कर दी थी, पता नहीं कौन सा वाला साइड हसल था। हाँ वही मैं बोलने वाली थी। तो दे यूज्ड टू कॉल मी टू लंदन अ लॉट ऑफ टाइम्स, और वो जनरली एजुकेशनल कुछ होता था, तो यूज्ड टू कि तुम जाके ट्रेन कर लो, नॉट जस्ट मी, मेनी पीपल। तो लंदन बिजनेस स्कूल में एक सेमिनार हो रहा था 1999 में, इमर्जिंग मार्केट्स, और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ब्रिक्स। तो अभी तो हम ब्रिक्स बोलते हैं, BRICS, पर वो ब्रिक होता था उस टाइम, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, अभी साउथ अफ्रीका नहीं था। तो मैंने अटेंड किया और मेरे को तो लगा यार क्या चीज है, मतलब पता नहीं क्या कर रहा था मैं अपने से, होता है ना व्हाट वर यू डूइंग विद योर लाइफ, से दैट दिस इज सो एक्साइटिंग, द वर्ल्ड इज सो एक्साइटिंग। मैं वापस आया अहमदाबाद और मैंने जॉब तो उसी को मना ही कर दिया, मेरे बॉस को, कि यार अच्छा किया तुमने मेरे को ये अटेंड करवा दिया, लेकिन अब तुम्हारे साथ काम नहीं हो पाएगा। I mean, you were the reason why I attended, but I'm sorry. And they were kind of supportive कि हाँ ठीक है, I mean, you've lived your life here, and you should move on. But it was like, अब इस सेंटर का क्या करूं, 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग पढ़ने आ रहे हैं, what do I do? इसके पहले टाइम और करियर लॉन्चर ने बहुत कोशिश की थी कि अहमदाबाद में घुस जाएं,
हाँ. मेरे सामने वो खड़े नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास 10 लोग भी नहीं जाते थे. तो मैंने दोनों को कॉल किया कि किसको आना है बोलो, मैं जा रहा हूँ. मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को तो इमर्जिंग मार्केट्स में कुछ करना है. हाँ. तो मैंने वहां पे 6 महीने का पूरा कोर्स किया. फिर वैसे 1 दिन का वर्कशॉप के बाद देयर वाज अ 6 month कोर्स. आई सेड आई एम गोइंग. टाइम ने बोला तुम क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा इसी वजह से तुम आ सकते हो, अदरवाइज तो आ नहीं सकते, तो कृपा कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर. तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी. आई सेड और ऐसे क्यों जाऊंगा मैं. आई एम गिविंग यू अ कंपटीशन फ्री मार्केट ऑफ 5,000 people that you would have taken 10 years to build. You don't have my persona. You would not have been able to build. You are not even an IMA student. आपके पास X factor नहीं, ऑरा नहीं, कैट का रिजल्ट. तो दे गेव मी अ लॉट ऑफ मनी कि अच्छा ठीक है यार तुम मुझे दे रहे हो मार्केट. They paid you money. गोल्डन हैंडशेक यार. प्रिटी गुड, प्रिटी लार्ज, मतलब ऑलमोस्ट 1 year's रेवेन्यू. मैंने बोला मैं तो 10 साल रहता है यहाँ, तुम्हारा तो नहीं होता आने का. तो दे वर लाइक हाँ ठीक है बनता है. So they paid and I was anyway pretty loaded and they made me even more loaded. I went to London Business School, emerging markets. अब वो कर लिया कोर्स, अब क्या करूं. मेरे को लगा इसकी जॉब कहाँ मिलेगी. जब किसी ने नाम ही नहीं सुना, मैंने ही पहली बार नाम सुना, someone who had read all his life. तो एक मेरा फ्रेंड था, वो BCG में काम करता था उस टाइम पे, नॉर्थ अमेरिका में. तो मैंने उसको ऐसी, और ये नहीं था कि उसको इसलिए कॉल किया कि जॉब चाहिए, मैं ऐसी बात कर रहा था एक बार. तो बोले तू ब्रिक के ऊपर पढ़ के आया. बोले यार मेरे यहाँ बहुत जरूरत है यार, ये तो हम लोग बिल्कुल क्रैक नहीं कर पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, और बहुत डिमांड है इसकी, बिकॉज चारों कंट्रीज में दे वांट समवन हु नोज द ग्राउंड रियलिटीज एंड हु कैन रियली काउंसिल देम एंड डू. तो वुड यू वांट टू पिक अप. मैंने कहा कंसल्टिंग से मेरे को बहुत नफरत है, मेरे को पसंद नहीं है. उसने बोला नहीं विल मेक इट टू योर लाइकिंग, तू बोल ये वो. बड़ी कन्विंस करके 1 महीने में आई काइंड ऑफ जॉइंड. तो आई वाज इन बीसीजी नॉर्थ अमेरिका, वीजा करा के मैंने कहा चलो ठीक. अब उसमें ये पता ही नहीं था कि इमर्जिंग मार्केट्स मेंट यू हैड टू ट्रैवल टू दोज इमर्जिंग मार्केट्स एंड डू द ग्राउंड अप थिंग, और उसके अंदर एनवायरनमेंट और लीगल और गवर्नमेंट और उनकी एडवाइजरी. और बेसिकली इट इज एन अमेरिकन कंपनी वांटिंग टू सेट अप शॉप लेट्स से इन अफ्रीका समवेयर. ओके. तो उनको हेल्प करो कि वो वहां पे जाके एस्टैब्लिश. हाँ, तो उनका गवर्नमेंट प्रॉब्लम, लीगल, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें. राइट. तो ड्यू डिलिजेंस कराना है सब. इट लुक्स वेरी ग्लैमरस, इमर्जिंग मार्केट में ऐसा काम होगा, बट इट वाज नॉट. इट वाज आई ट्रैवल्ड टू 39 कंट्रीज इन 4 years. ये सच है. माय गॉड. बट इट वाज नॉट वेरी वेरी एक्साइटिंग. तब मुझे लगा कि चलो अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी हो गया, एक साइड हसल जॉब भी हो गया, कोट और अब बीसीजी की जॉब भी हो गई. तो अब तो वापस हार्वर्ड जा सकते हैं. वर्क एक्सपीरियंस आपका. तो फिर मैंने जीमैट तो एक्सपायर हो गया था 5 साल में, मैंने दिया बगैर पढ़े. इस बार 770 स्कोर आया. तो मैंने 770 इनफ. तो मैंने अप्लाई किया और बड़े अच्छे रिकमेंडेशन लेटर्स मिल गए बीसीजी से और हर जगह से. आई अप्लाइड, आई गॉट थ्रू, एक्चुअल सिलेक्शन हो गया. और 1 महीने मैंने जाके I attended the classes. This was 2004. I actually joined officially. August mein I joined. Okay. Or late August, almost September. How did it feel like when this happened? When what happened? When the admit came in. It was surreal. It was. Howard was still a haloed. Life would have just come back a full circle, I feel. Howard was really one of those moments. Sacred halo. Like, पता नहीं उसका कुछ चार्म माइंड में ऐसा कुछ था कि ऑल्दो फैमिली में हो चुका था, फादर गॉन, बट स्टिल समहाउ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी वहीं जाते हैं, उनके बच्चे भी वहीं जाते हैं. ये वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस टाइम पे था. ही वाज फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हिमसेल्फ. हमारा उस टाइम का बात, मतलब दिस वाज जस्ट दैट एरा कि इट वाज. एंड हार्वर्ड वाज ऑलवेज नंबर 1 तब. अब तो नहीं है, कई बार नहीं होता, बट ऑलवेज नंबर 1. मतलब 100 साल में शायद कभी भी हार्वर्ड नंबर 2 स्कूल नहीं रहा उसके पहले तक. तो इट वाज लाइक दैट. इट वाज ग्रेट, सररियल, रियली सररियल. एंड ज्वाइन किया, फीस वगैरह दी पूरी, सब कुछ फर्स्ट ईयर की. वो तो एक साथ ही लेते हैं, महीने का कुछ नहीं होता, पूरा 1 महीना अटेंड किया. आई डिड प्रीटी वेल. आई परफॉर्म्ड आल्सो. केस स्टडीज मेरे को बहुत शौक था, तो मैंने काफी किए. क्विजेस में आई लव्ड इट. आई मीन, एंड आई डिड नॉट हेट कि यहाँ पे भी फुल एकेडमिक स्टाइल है. You like the curriculum and the way they I teach loved it. everything. I mean, the way it was portrayed, it was exactly like what. So you got what you expected and what was stored. Absolutely. And it was a very clear emphasis on leadership. You are the guys who will be leading the world. Emerging leaders, yeah.
मतलब वैसा लीडर नहीं कि चलो कोई कंपनी में तुमने टीम लीडर बन गया, आपको सीईओ बनना है या आपको कोई कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना है, उस लेवल का। करेक्ट। वो उस लेवल के थॉट के साथ, इट वाज ग्रेट। सो सर, आपने ये पूरी स्टोरी हमें बताई, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ डिड यू नो गो फ्रॉम wanting to and dreaming to and living, breathing, eating to go into Harvard to, you know, leaving that entire dream and then moving towards teaching. So how did somebody who wanted to get into a Harvard move towards dropping out from there and becoming a teacher? 1 महीने बाद खबर आई सडनली कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो उसके साथ थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो वर्ल्ड बैंक के या कभी रिजर्व बैंक के इनके कुछ वो बड़े प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं, तो ही वाज देन द इंस्पेक्शन टीम। ओके। तो बिहार गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिला कि वहां पे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो माय डैड हैड टू ट्रैवल टू बिहार। तो उस टाइम पे तो एम्बेसडर कार्स आते थे कुछ इंडिया में, बड़ी कुछ ऐसी। तो आप एयरपोर्ट से भी निकल जाओ, लेकिन ऑन ग्राउंड तो यू हैव टू ओनली गो इन दोज एम्बेसडर कार्स। तो ही वाज गोइंग एंड थोड़ा सा रात का टाइम हो गया था, 8:30-9 बज गए थे। तो कोई किसी ट्रक ने पीछे से आके, सरिये होते हैं ना, खुले ट्रक होते हैं जिसमें, oh my God, जिसमें वो हाँ जिसमें सरिये रखे होते हैं। oh God. तो पीछे से ट्रक ने रैम कर दिया एकदम। तो it was a very heavy truck because of the iron work load of the truck. So on the spot, I think he was in coma suddenly. He was initially taken to a local hospital, brought to Delhi, and मुझे कॉल आया immediately वहां पर हार्वर्ड। मैंने नेक्स्ट फ्लाइट देखा, वो मुंबई का फ्लाइट था, दिल्ली का था नहीं डायरेक्ट। तो मैंने बोला मैं दिल्ली का फ्लाइट तक का वेट नहीं करूंगा, मुझे जाना है बस। He had been brought to Delhi by then in a flight. वो गवर्नमेंट करती है अच्छे। मैं आया, मतलब मुझे समझ ही नहीं, बीच में आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि फोन में तो ऐसा सिस्टम नहीं थे, मोबाइल्स, बट इतना वो नहीं था। तो I came to my Delhi house, and the person who was like इतना एनर्जेटिक पर्सन, ऑल माई लाइफ आई हैड सीन कि मेरे में अगर एनर्जी नहीं हो तो होता है। एट 20 probably I didn't have that much energy as he probably had at 45-50. Yeah. The person lying like this and in coma. एक ऐसी साइट होती है ना अनइमेजिनेबल, कि उस टाइम पे अगर कोई पूछे हार्वर्ड जाना है क्या वापस, या मेरे दिमाग में डिसीजन नहीं, देयर वाज नो डिसीजन टू मेक कि नहीं यार शायद वहां चले जाना पड़ेगा, 1-2 महीने ही रह सकता हूँ। Nothing doing. I did not have to make a decision. I had to be with him. Right. Everything that I had done in life was because of him. All professional, personal, everything. Right. And like there are some people ना, you love them so much कि खत्म ही हो जाती है दुनिया आपकी उसके बाद। तो वो था, बट कुछ हुआ नहीं। 3-4 महीने ऐसे ही चला। डॉक्टर्स ने तो बोल दिया कि भाई नहीं हो पाएगा। I mean he might not survive. He will not probably. Okay. एक दिन miraculously he was in his senses for some time. He was in his senses. और उनको जब पता चला उनके साथ क्या हो गया है, उन्होंने मुझे देखा, he remembered पूरा, उनका गया नहीं था। Memory was there. और मुझे बिठा के बोला, बेटा मैं तो हो सकता है 1 घंटे में मर जाऊं, और या हो सकता है 10 साल वापस कोमा में चले जाऊं। तुम हार्वर्ड क्यों छोड़ के आ गए? मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का सपना था, पूरी लाइफ का सपना जिसको। और मैंने बोला बट सपना भी तो आपने दिया था, आप ही नहीं रहोगे तो क्या? मेरे मतलब नहीं था दिमाग। and he couldn't really do anything because he was just lying in bed and very weak, but he imagined in that instant also उनके दिमाग में था कि तुम वापस जाओ। मतलब कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। and he was very upset कि मैं वापस आ गया उनकी वजह से। मैंने I mean I don't know how, I've never screamed at my dad in my life. Obviously you don't to your parents, but that day I just screamed कि आपको क्या सुनना है, मैं नहीं जा रहा हूँ। And it was a very high volume. तो 2-3 दिन तक तो वो होश में थे। तो मुझे एक दिन वापस अगले दूसरे दिन बिठा के बोला कि तुमने IMA के बाद कैट की ट्रेनिंग की थी, मुझे पता चला, तुमने तो मुझे बताया नहीं, बट मुझे पता चला। तो अगर तुम हार्वर्ड से आ गए हो तो इंडिया में कितने लोग हैं जिन्होंने हार्वर्ड का नाम भी नहीं सुना, आईवी लीग का नाम भी नहीं सुना। तुम उनको दिखाओ वो सपना और वो सपना पूरा कराओ, तुम्हारे पास सब कुछ है। He said that. Okay. कि you can do that। अगर तुम्हारे को है कि नहीं ही जाना है, and मेरा भरोसा नहीं है, I might be alive for 5 years, you'll not go, I know।
आई नो कि तुम नहीं जाओगे, मतलब मुझे पता है कि तुम जब तक मेरा वन और वे और द अदर यू आर नॉट गोइंग। तो सेकंड बेस्ट क्या, दिल्ली शहर में तो बहुत लोग होंगे एस्पिरेंट्स, नहीं भी होंगे तो यू क्रिएट दैट बज, तुम बनाओ उनके मन में कि किस जगह पे तुम पढ़ रहे हो। और ये सच है कि आज भी इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी IITs वो टॉप 500 में भी नहीं आती। तुम वी आर नॉट इवन इन टॉप 500 सेइंग कि, और तब भी यही था कि हम अगर टॉप 500 में भी नहीं है तो दुनिया को बताओ टॉप 5 कैसा होता हो। तुम तो जानते हो कैसा होता है, तुम तो ठीक है, इंडियंस जो पूरी मीडियोक्रिटी में ही रहते हैं लाइफ लॉन्ग, और उनको पता भी नहीं एक्सीलेंस क्या होती है, एंड दे डोंट इवन रिमेम्बर। मतलब उन्होंने फिर फिगर दिया कि तब भी ये सच था आज भी, और करीब करीब कि नोबेल प्राइज अगर देखा जाए तो इजराइल में जब बच्चा बड़ा होता है कि फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको ये नहीं बोला जाता कि तुम्हें साइंस पढ़ना है या डॉक्टर बनना है, वो उसको बोला था तुम्हें नोबेल प्राइज लाना है फिजिक्स में। IIT में जाने के लिए फिजिक्स नहीं पढ़ता हूँ कोई या कोई। तो देन ही गेव मी कंपैरिजन कि उस टाइम तो इंडिया से 2 लोग नोबेल लॉरेट्स थे टोटल, 140 करोड़ पीपल की पॉपुलेशन में जब, और नोबेल प्राइज वाज दैट वाज इंस्टीट्यूटेड लॉन्ग बैक, मतलब ऑलमोस्ट 100 इयर्स अगो, 2004 की हम बात कर रहे हैं, 1905 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो 100 साल में 2 नोबेल प्राइज। उन्होंने बताया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आज की स्टेटिस्टिक बताता हूँ मैं, वो तो उन्होंने जो बताया थोड़ा सा चेंज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से 800 पीपल वर्क देयर। Would you believe this statistic? I mean, I'm just telling you कि मैंने जब सुना था, मैं आज तक भी कई बार भर रहा हूँ, मैं वापस चेक करता हूँ, कोलंबिया के फिजिक्स डिपार्टमेंट से 800 पीपल वर्क देयर, वी आर 140 करोड़, they have produced 33 Nobel laureates from physics department of one university, not Columbia University, not New York City, not New York State, not America. 800 लोगों का फिजिक्स डिपार्टमेंट ने 33 नोबेल लॉरिएट्स क्रिएट किया, और यहाँ 140 करोड़ ने 105 साल में या 102, तब अभी 4 हो गए, 3 उसमें से 4 में से 3 अमेरिकन सिटीजन। करेक्ट। तो जब ये क्वालिटी देखते हो आप तो आपको लगता है कि व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट फिर से करना है। और इस बार जो था वो जो एक लास्ट पीस मिसिंग था, इम्पैक्ट, कि सुबह उठ के आप ड्रीम करते हो कि आज किसको आप इनेबल करा सकते हो। एंड आई डू इन्विजन कि आईवी लीग एजुकेशन वो इतना वर्थवाइल टारगेट है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इंडिया से 2 लाख लोगों का वो ड्रीम पूरा करा है इतने सालों में। तो या दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, वेरी ह्यूज नंबर। मतलब किसी का आईवी नहीं हुआ तो उसके इक्विवेलेंट, जैसे स्टैनफोर्ड का नाम आईवी लीग में नहीं है, बट वो तो उससे भी ज्यादा ऊपर है, तो वो नहीं। बट यस, 200,000 पीपल हैव मेड इट टू टॉप universities in the world, way better than anything in India, way better. And उसके लिए tools तो आपको ही देना पड़ेगा, GMAT, GRE ये tools हैं उसके जाने के लिए। तो MBA was major मेरा, क्योंकि business education में बहुत interest। MS also was there कि उतना नहीं था कभी भी, but GRE was, that is why it was a secondary thing for me always, but GMAT was the primary driver। तब भी ये इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें भी 2 साल लगे बीच में कुछ, बट फाइनली व्हेन इट स्टार्टेड 2009 में जून में हमने स्टार्ट किया। आई नेम्ड इट टॉप 1%। इट स्टार्टेड इन बैंगलोर फॉर मेनी रीजंस, बट 15 साल। You started top 1% in Bangalore only? फिर दिल्ली, then Delhi, because so initially what happened, this dad said, and then after some time he passed away because देन बीच में ऐसा होता है आपको जॉब ऑफर्स आने लगते हैं फिर से। तो आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन आईटी कंपनी इन इंडिया, बहुत बढ़िया जॉब ऑफर, व्हिच इज माय जॉब वाज नॉट इन आईटी बट इट वाज एन आईटी कंपनी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई लव्ड इट, सो आई थॉट चलो ये ले लेते हैं। जीमैट तो मैं शुरू कर ही दूंगा, अब तो प्रॉमिस कर दिया फादर से। बट यू गेट बिजी, मेनी अदर थिंग्स हैपन इन लाइफ, मेनी अदर थिंग्स, मतलब बड़े ट्रॉमेटिक भी एक्सपीरियंसेस, बड़े इनलाइटनिंग भी। तो काफी लंबी है वो, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, विल कीप इट टू दिस एजुकेशन थिंग। यस। तो then finally it may sound very weird, but one day I see my dad in my dreams कि बेटा 1.5 साल हो गया बात हुई थी अपनी, और बिल्कुल नीटली, you don't see, I don't see dreams, I'm not like someone, उसको ड्रीम आते हैं तो वो वेग वाला कुछ के कुछ वो जो वेगनेस, बट क्लियर कट ड्रीम्स कि 1.5-2 साल हो गए, स्टार्ट तो तुमने किया नहीं, मेरे प्रॉमिस का क्या हुआ? क्या स्टार्ट नहीं? ये आईवी लीग वाला? हाँ, तुमने एक्चुअली स्टार्ट तो किया नहीं। ओके। और उस दिन आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग। उसके बाद भी 1.5-2 साल लगे, मैंने कहा ना कि बीच में जॉब ले ली, सब कुछ और।
Then in 2009, at that time I was in Bangalore doing some storytelling event. मैंने वो भी अपनी skill develop कर ली थी, public speaking, storytelling from stage and corporate. और मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि बस ये लास्ट मेरी इवेंट है इन सब चीज, नो मोर कॉर्पोरेट, आई हैव टू. एंड कई सारे लोग आ जाते हैं जब अटेंडीज, तो मैंने पूछा कई लोगों से कि कोई जीमैट में इंटरेस्टेड होता है बैंगलोर में, एज ए कैजुअली. एंड देयर वाज दिस गर्ल हु वाज प्रिपेयरिंग, वो इन्फोसिस से थी उस टाइम पे. इन्फोसिस उस टाइम पे बहुत अच्छी ब्रांड थी. बहुत ध्यान से बोल रहे उस टाइम पे, समझ रही हूँ सर. तो उसने बोला मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और इन्फी में तो कितने लोग प्रिपेयर करते हैं. तो मैंने बोला क्या डेटा है. तो उसने बोला आपके पास कुछ है. तो मैंने बोला नहीं, अभी तो कुछ स्कोर रिपोर्ट वगैरह नहीं है, और आप लिख दो 1-2 दिन में. मैंने पूरी स्टोरी बताया उसको. मैंने बोला थोड़ी तैयारी करके लिखूंगा इस बार, 770 नहीं लाना चाहता. तो मैंने 3 हफ्ते तैयारी की बैंगलोर में रुक के, मैं गया ही नहीं दिल्ली. मेरा 800 आ गया फिर से. बड़ा कमाल की बात है, सेकेंड टाइम. तो मैंने उसको देखा है, मैंने एज इफ कि वो मेरी टीचर, मैं ऐसा भी. तो उसने बोला अब ये स्कोर रिपोर्ट इन्फी के बुलेटिन बोर्ड पे जा रही है, 1.5 लाख लोग हैं उस पर, 85,000 तो बैंगलोर में ही है. मतलब वापस से आप सोचते हो कि एक नए शहर में शुरू करोगे तो 2 लोग 4 लोग आएंगे. यहाँ तो ऑडिटोरियम में शुरू हुआ फिर से. आई स्टिल रिमेम्बर सत्य साई ऑडिटोरियम में बैंगलोर में 585 सीट्स हैं. वी हैड टू पुट अप 100 एडिशनल चेयर्स फॉर द फर्स्ट बैच. हमने वो ऑडिटोरियम साल भर के लिए बुक करा, क्योंकि सैटरडे संडे वो ऑडिटोरियम में ही क्लास होता था हमेशा ही. तो इट वाज अ रेवोल्यूशन द वे इट स्टार्टेड. एंड देन आई कॉल्ड इट टॉप 1%, क्योंकि मैंने देखा 800 लाने के बाद भी मेरे को 100 परसेंटाइल नहीं था. मेरा स्कोर 800 आने के बाद भी नहीं था. जीमैट में और जीआरई में, अभी नया जीमैट तो बदल गया. हाँ. उसमें 100 परसेंटाइल आने लग गया, फोकस एडिशन. ओके. पुराने जीमैट में 99 परसेंटाइल वाज द हाईएस्ट. ओह. नॉट 100 परसेंटाइल. तो मुझे लगा कि 99 परसेंटाइल तो 1%. तो टॉप 1% आई नेम्ड. एंड 2009 से आई हैव लिव्ड दिस पर्पस एवरी सिंगल डे. अभी जून 2 को विल फिनिश 15 इयर्स. 2 जून को ही शुरू हुआ था. एंड या इट्स बीन वन ऑफ दोज राइड्स. आज मुझे वो लैक ऑफ पर्पस नहीं, इसलिए वो 15 साल में कभी डाई डाउन नहीं हुआ पैशन. That's why you've been able to sustain. I wake up in the morning thinking I want to send more number of people to Ivy Leagues. And I mean, आपका ड्रीम खत्म हो जाता है, आपने 100 लोगों को हार्वर्ड भेज दिया, अब कितना उसके बाद, मतलब बहुत ही बड़ी बात है. सेकंड हाईएस्ट ट्यूटर इन द वर्ल्ड who teaches the GMAT has not sent even 4 people. The highest is 3 after me. And I have 126 people making it to Harvard alone. Yeah. Overall, तो मैंने बहुत सारे schools हैं, obviously. Wharton में we have had more than 600 selections. It's number 1 in the world right now. Yeah. So crazy. So yeah, I think that's kind of that speaks volumes about the impact. So, but since we're talking about the GMAT and about these top Ivy League institutions, and it's the dream of so many people. You know, when somebody comes to you for mentoring and coaching and they show interest that we want to get trained under top 1%, I want to understand from you that a lot of people, without trying to demean anybody, but हर इंसान की अपनी क्षमता और कैपेबिलिटी शायद होती है, नहीं होती है. एवरेज आपको बुलाना है, बिलो एवरेज, सब पार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हाटएवर. Somebody who hasn't done academically very well all throughout their life, you know, stellar academic record, something very well in terms of कुछ spike है, you know, resume में, extra curriculars बहुत अच्छे किए हैं, internships, मतलब आप एक average student रहे हो throughout your life, can you still dream to crack and admit in these Ivy League institutions? Yeah, I mean, this is a question that we face every day and we answer every day, because हर कोई कॉल पे यही पूछता है कि मेरी तो प्रोफाइल बिल्कुल बेकार है, मेरा हो सकता है, क्योंकि उनके मन में यही सबसे बड़ा डर होता है. राइट. और मैं क्या है ना, हवा में बात करो तो हर कोई सेल्स की तरह बात करोगे तो है कि हाँ सबका हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं. मैं वैसा नहीं, मैंने एक्चुअली करके दिखाया है. So I'll take 2 names because we have 200,000, so probably 20,000 very average profiles. Obviously there are stellar profiles, there's no question about it. I mean, there are people who've done 5 entrepreneurship ventures, raised $300 million already. They still want to go to an Ivy League school or something. That's different. Yeah. But in general, so there's this girl Kritika Pugalia. On paper, the profile is Symbiosis BBA, 3 years work, extremely average GPA, and the work experience in 3 companies that are unheard of.
And the last job was freelance. I mean, you can check her profile. Freelancer. Okay. She got into Wharton with scholarship. Like, you dig into the profile and say, let me find at least one awesome thing about this profile. One. You wouldn't find anything. Because there's a big myth that they look into your past. They can look into what you are from today, what you can produce. You can produce a spectacular story. And the story part is not storytelling. It is called story selling. We have that term because telling means what happened. And selling means you are making someone decide in your favor. You're selling it. Correct. That is one. And second, what you can change is the GMAT itself. आप आज से क्या बदल सकते हो? ठीक है, you went to an average college, but is there a substitute? You can't change the college you went to. You can't change the company you work for suddenly. 5 साल से काम कर रहे हो. You can't change your GPA. But you can change your GMAT score. If it was bad, you can change it to good. If it has never been there, you can produce a great score. Correct. And the second thing is the myth that B schools think about your past. Yes, that is one component. It must be mattering to some extent, no? But so. In some cases, it matters. I'll just give you an example. One guy who came to me who had nothing, he was from Ranchi, Bihar, and who had absolutely nothing. He attended a seminar of mine and called Millionaire Maker, in which I was talking about billionaire habits of reading. These are billionaires, जो US के billionaires, they have a reading habit. और मैंने बोला कि जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैंने सबको रीडिंग हैबिट लगाया क्योंकि यूएस में जो हम भी जाते हैं लोग पहले से पढ़े हुए होते हैं सब लोगों ने 1000 बुक्स पढ़ रखी एंड दिस वाज इन 2012 बाय द वे सो देन पीपल एक्चुअली रेड आल्सो अब तो पढ़ता कोई नहीं पीपल एक्चुअली रेड ये बंदा था रांची बिहार का इसका 5 अटेम्प्ट में उस टाइम पे 580 स्कोर आया था 5th अटेम्प्ट बड़ी बुरी हालत इंग्लिश नहीं आती मैथ भी नहीं आता मतलब दोनों हालत मैंने बोला कि तुम ट्रेनिंग ले लो देखते हैं तुम्हारा स्कोर बढ़ा सकते हैं कि मैं तो नहीं लेता गारंटी क्योंकि तुम्हारी हालत जो है और तुम्हारा जो ये बिलीफ है कि मेरा नहीं होगा हर चीज में मेरा कैसे फिर भी उसका 700 आया 700 पे कुछ नहीं मिलता वैसे कुछ नहीं बट 700 आया कम से कम 7 की फिगर आ गई अब मुझे बोला कि मुझे तो ना कोई ना आया था हमारे कॉलेज में उसने बोला था MIT जाना है या स्टैनफोर्ड जाना है तो मैंने बोला तुमको पता भी है तुमने देखा भी MIT स्टैनफोर्ड नक्शा भी देखा है कभी अमेरिका का मैंने तो सही है तो बोलता सर यही जाना है मुझे तो मैंने उसको बोला तुम रिसर्च करके आओ चलो कोई बात नहीं 2-3 दिन तुम रहो यहीं पर तुम सेमिनार खत्म हो गया तुम रिसर्च तो करो वो देख के आया पहली बार प्रोफाइल उसने ये तक नहीं रिसर्च कर रखी जाना है बस ऐसे तो बोलता सर सब लोगों ने अपनी प्रोफाइल चढ़ा के रखी है और खुद वहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल अलग बनाते हैं और कॉलेज अलग प्रोफाइल बनाता है और मैं तो मुझे तो नहीं लगता मेरा हो भी जाएगा तो मैं वहां 5 मिनट भी ठहर पाऊँ मैंने कहा मतलब सर सबने अपनी बुक्स की बड़ी लिस्ट देके रखी है कि मैंने इतना रीडिंग किया और आपके सेमिनार में मैं पहली बार सुन के जा रहा हूँ कि कोई रीडिंग भी चीज होती है टेक्स्ट बुक्स ही नहीं पढ़ा मैंने तो आज तक बाकी करके तो बट मेरे को ड्रीम हो गया तो आप क्या करा सकते हो तो मैंने बोला पवन नाम था पवन गुप्ता तो पवन You've never read a book. How about writing one? क्या बोल? He was like ये क्या बोल रहे? ये मतलब ये चढ़ा क्या है? कुछ तो मतलब फूंका है. तो आपने क्यों बोला पर उनको ये? मेरे को एक आइडिया आया तो मैंने उसको बोला कि let's do something. मैंने बोला this will be your essay page, this will be your interview page and this will be your introduction. There are 3 pages. Introduction भी देना पड़ता है मतलब के MIT में क्लास को आपको. तो मैंने बोला आपको बुक नहीं पढ़ी इसलिए एक बुक लिखनी है जो सब लोग पढ़ें दुनिया में. तो उसको obviously हाँ तो then I said that एवरेज में बिल गेट्स वॉरेन बफेट जो बड़े रीडर्स माने जाते हैं दुनिया में उनका मानना है 250 बुक्स एक ऑप्टिमल फिगर है कोई पढ़ ले अगर करेक्ट तो मैंने बोला अगर एक बुक सोचो ऐसी बुक हो जिसमें बुक्स क्यों पढ़ते हो आप जॉय के लिए वगैरह छोड़ो आप पढ़ते हो विजडम के लिए अगर मैं एक पेज में एक बुक की इतनी अच्छी जो मैंने पढ़ी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विजडम बता दूं तो जरूरी नहीं है कि बुक पढ़ी जाए एक पेज में ऐसे दूसरे पेज में मैं दूसरी बुक की बता दूं तीसरे पेज में तो मैंने कहा तुम MIT जा रहे हो MIT से ज्यादा टैलेंटेड नहीं मान लो तुम MIT जा रहे हो या स्टैनफोर्ड तो मतलब तुम भूल जाओ शायद तुम्हारा नहीं भी हो बट लेट्स अज्यूम तुम्हारा तो हम ये ही पिच डालते हैं कि आई वांट टू कम अप विद वन बुक दैट विल हैव 250 पेजेस
each page having the wisdom of MIT students, or one of the MIT students on one page. And I'll take the interviews. So suppose I'm there and you are the MIT classroom right now and say that I come from a country where the habit of reading is never encouraged. And I've been a victim of this. And maybe just a few months ago, I just came to know through a seminar by one of my mentors that reading is essential. But I read so slow that in my lifetime, I could read only 5 books probably, even if I were to start. Right. And it's a problem that everybody faces in developing countries. We are not encouraged to read, which is true even for America, where it's not only developing. Not for you. So but at MIT, we are not here to lament the problem. We are here to solve the problem. We are supposed to be the best brains solving the problems. So I want to come to you, and I know all of you have read so many books, excluding me, that I haven't read any book, but I know you have. And if I were to come to you and say that, tell me the name of that one book that you would want everyone on the planet to read before they die. And just one book. You may have read 2,000, 1,500. One book that you would believe every single person on the planet must read before they die. That title you give me. And if I were to come to you tomorrow with my camera and record an interview, you give me 15 minutes of time and only the most important lessons from your lens. Summary nahi jo podcast, summary nahi. Your lens you give. Your point of view. And I want to create a book containing 250 books like this, 1 page per book. But practical life lessons from the super achievers of the world at MIT. And I'm on a world-changing mission. This is one book that will go out to the world. Through MIT Press, I want to release it on an international platform as a non-profit venture of mine. Okay. MIT is the number 1 university in the world. Actually, it is not number 1 B school, but number university. 1. And with its clout, it can even convince world governments and state and central governments or national governments, and it can convince all schools of the world that this one book will be made absolutely compulsory curriculum before 18 years of schooling is done. Students will have to write an exam based on this book. Now imagine if this were to be made compulsory curriculum in the world, how intelligent, how informed and how thoughtful the children that come out would be. And people will not suffer the way I am suffering right now. Right. We are supposed to be problem solver. I could have done it alone, but I want every one of you to step in. My plane takes off tomorrow. Are you boarding? This is a world-changing mission. Now, tell me, where is the profile in this? Where is the profile? Nowhere. उसने नहीं बताया मेरे मार्क्स कितने हैं, मेरा कॉलेज कौन सा था, कुछ नहीं. MIT and Stanford both selected. MIT gave him 100% scholarship. So he joined. My God. Today he's an AI-based entrepreneur and he's raised like 400 million. But at 700, which is a below average score on the GMAT for this school. The power of story selling. कैसा था ये story बताओ आपके लिए? Blockbuster. It's too good. No, but I think the way, like while you say we are mostly telling stories, that's where the play is the word play. The moment you start selling your story versus telling your story, I think the entire ball game changes then. Absolutely, because selling is you're moving the needle in your favor. With everything you say. Correct. The steering wheel is in your hand then. Every time I say कि तुम एक sentence भी बोलो तो उसका impact होना चाहिए कि अच्छा, maybe 1% I'm more convinced that I want this person. Right. इंटरव्यू की बात नहीं है, सिर्फ 1% more convinced with one sentence. तब थोड़ा तो चलेगा 15-20 मिनट में, the person will be in your favor. No. So that's how. So it's not just one example. This is how I turn around. I don't care about the past. मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उसकी क्या प्रोफाइल है. अच्छी भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. मतलब मैं उसको I weave it into the future altogether. अरे इतना radical नहीं कि टिबेटन refugees को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग खत्म करना, ये पागल नहीं. मैं बहुत practical बात, ये तो बहुत practical. Very practical, yeah. Very practically implementable also. Yeah. So ऐसा ही कुछ करके, and this looks like wow. Yeah. इसमें कौन fault निकाल सकता है? Correct. If this person can even think like that. Yeah. अब उस किसी को ये तो पता नहीं कि मैंने सोचा है. हाँ. लोगों को तो नहीं पता है. और obviously consultants का काम नहीं होता कि वो बताएं कि दुनिया को बताएं कि मैंने सोचा. हाँ. But if this is the person coming, then he can think of many more solutions. Definitely. So we never believe in the past because, and another thing, I was talking about 2 students. We also had a student called Dhananjay last year. Okay. Dhananjay Venkatesh. Again, Christ University BBA, less than 3 years of work experience. Grades 2.2 on 4, 60% only. And his work experience was entry-level analyst. Bilkul hi regular job.
We made him go to INSEAD, which is world's number one year MBA, Yeah. and Wharton, the other girl, which is world's number 2 year MBA. That girl went through with scholarship, and this guy went into INSEAD. So प्रोफाइल से नहीं यार, आपको आज से क्या बदल सकते हैं? आज अपने, I mean, this guy is a motorcycle enthusiast. तो हमने पूरी कहानी उसकी बाइकिंग और मोटरसाइकिल और लाइफ लेसन्स, एंड इट इज नॉट दैट कुछ नहीं है तो चलो इस पे लिखते हैं. आप इतनी कन्विंसिंग बना दो वो स्टोरी, और उसकी अलाइंड भी होना चाहिए उसके साथ. ऐसा नहीं कि अलाइंड ही ना. नाउ दिस गाय पवन गुप्ता वेंट टू MIT, उसका पेन को हमने एक्सप्लॉइट किया ना. दैट पेन ऑफ हिज दैट हैवन नेवर हैड, उसको एक्सप्लोर किया कि लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. हु बेटर देन सॉल्व दैट प्रॉब्लम? ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम एट लीस्ट, द पेन एट लीस्ट. सो समहाउ आई थिंक it's something that connects. Great. If I was to ask you, ki apart from obviously a good GMAT score, a decent profile, let's say, and a great story, do you think there is something else in your personal opinion जो किसी की profile को, you know, automatically it just helps you stand out? It does. I mean, you have those things, like 50% of the people actually have a profile from the past. Correct. They're working with, let's say, a McKinsey or a Right. Google already. Right. They have And that does have an advantage, Oh, right? extra. The point is that the remaining 50% that don't. I mean, one has gone Correct. to SRCC, done 10. So, आपने जो एग्जांपल्स दिए उनके थ्रू, तो what I understand is if you don't have a very stellar profile also and you can have a story that sells, then you can make it to the top Ivy League institutions. But in general, obviously, I'm sure there is a certain majority, or let's say a part of the people who get into these top Ivy League institutions also have something that sets them apart from most people, right? So what is it that a person can work towards or build in order to be able to just cut through the clutter and just get noticed? Okay, so first thing is that the profiles that I talked about would fall into probably about 40% of the people. Okay. About 60% of the people genuinely have spectacular profiles. They've done something extraordinary in their lives. And let's say somebody has gone to IIT. So that person is, IIT is not the point, but that person worked very hard at one point in time. So that person is very focused, very driven. Now for the second, let's say that person is in second year of college. That person, because he's worked so hard, would also want something spectacular. So they start looking at life very differently. Their internships will be different. Yeah. IITs have a very good network of people. They'll look at jobs very differently. They'll even do 2 or 3 startups. They might fail. They might not. They will travel to different countries just to gain experience. It's 15-day student exchange. They will do at 5 universities. They will learn a few languages. So they have a lot, and they'll probably be placed with a McKinsey with the highest package in the country, or with a Google or Goldman Sachs. So they have all of that. And despite that, they have to position the entire journey in a very, very creative way that seems very organic. But it doesn't mean that if you have a great profile, then it's a disadvantage. It's an extraordinary advantage. But the way I was talking about, even if you don't have, you can create these X factors, which I talked about. Now, what is it that creates the X factor you were asking? I think 3 or 4 things. One is the ability to talk about the whole thing as one seamless story. The schools do not like that this is out of sync. Even 0.1%. Uniformity, you mean? जैसे आप एक कहानी बताना शुरू, जैसे मेरी कहानी मैंने आज बताई, तो मेरे को ये कि एप्टीट्यूड टेस्टिंग का बचपन से शौक क्यों लगा, नॉलेज का क्यों लगा, मतलब मैंने जीमैट क्यों दिया, वो मेरी कहानी, क्योंकि सच में ऑर्गेनिक है तो लुक्स लाइक ऑर्गेनिक. पेरेंट्स भी हार्वर्ड पढ़ के आ गए, तो है कि बचपन से घुट्टी की तरह पिला दिया कि हार्वर्ड. तो वो जो चीज है, हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, 5 अलग अलग चीजें उठाएंगे और उनको सबको डाल देंगे रिज्यूमे में डंप करके, और दिखता है कि यार ये कौन है, मतलब ये तो मतलब ऐसा है कि एक दिन फार्मर था, अगले दिन इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया, अगले दिन मार्क्स कराने लग गया. तो मतलब ये तो अलग ही आदमी है, आइडेंटिफाइबल ही नहीं है. करेक्ट. तो वो चीज को करना पड़ता है, सीमलेसनेस. नंबर 1, दैट इज वेरी हाईली वैल्यूड. राइट. द अदर थिंग इज योर पर्सोना. ओके. आज मैं 4 लोगों की प्रोफाइल देखूं, मान लो सबके पास सेम डिग्री है, सबके पास सेम जॉब है, और सबके पास ऑलमोस्ट सब अचीवमेंट सेम है, जीपीए सेम है, सब सेम है. उन चारों में से, और उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की, और बेस्ड ऑन द एसे आई हैव टू सिलेक्ट 1 person because I have 1 seat. Whom will I go for? The ones that speaks to me, to my soul, because even as an evaluator, I'm a human being first. Yeah. And what speaks to people is not uniformity, but rebellion.
It's the absolute, and it's not unsaid, it's more like a said rule. ड्यूक जैसे स्कूल की एप्लीकेशन में है कि 25 अलग अलग चीजें बताओ अपने बारे में, एक भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। कोलंबिया में कैसे है कि डोंट टॉक अबाउट योर स्टडी और योर वर्क एट ऑल, टेल अस समथिंग दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ और योर कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ। तो मतलब कितनी अलग अलग चीज। सो दे वांट टू वैल्यू पर्सोनास। NYU स्टर्न, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स, वो बोलता है कि अगर हम 500 लोगों को ले रहे हैं, राइट, तो हम 500 बिल्कुल अलग अलग लोगों को ले रहे हैं, एक दूसरे से मैच नहीं। इंडियंस तो खैर अलग अलग की बात नहीं, सब एक जैसी। इंजीनियरिंग करते हैं तो ISB जाते हैं तो लगता है मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के सब आ गए, AC लगा है बस कॉलेज में। एक वो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज, CA वाले तो बोले हाँ ये सब CA, तो मेरे साथ ही कोचिंग में जाते थे, कोटा वाले हैं, ये CA वाले हैं, ये सब ISB आ गए। बस कैंपस अच्छा है, खाना अच्छा मिलता है, AC लगाओ, इसके अलावा कोई फर्क नहीं, मेरा ही कॉलेज ही है। बट दैट इज द पॉइंट। वो 500 डिफरेंट कहाँ से लाओगे आप? 500 लोग जा रहे हैं तो 500 पूरे अलग अलग, एंड दैट कैन ओनली कम फ्रॉम योर बिलीफ। करेक्ट। मैं बोलता हूँ हार्वर्ड एजुकेशन आपको कभी यूनिक नहीं बना सकती। आपके बैच में 1000 लोग होंगे जो हार्वर्ड में, तो हार्वर्ड का टैग डज नॉट मेक यू यूनिक, इट मे मेक यू यूनिक टू अदर पीपल, बट विद इन हार्वर्ड तो यू आर वन ऑफ द 1000 स्टूडेंट्स। सो हार्वर्ड की एजुकेशन डज नॉट मेक यू यूनिक। व्हाट मेक्स यू यूनिक इज योर यूनिक बिलीफ सिस्टम, the way you view the world from your unique lens. Right. मतलब आपका दुनिया देखने का तरीका आपका होना चाहिए। वो लोग नहीं समझ पाते, बट हमारा काम है, एजुकेटर्स का काम है, तो we make them come out with something that is so unique and personal to them. Right. And that is what their interview is all about. हम यही करते हैं कि इंटरव्यू में सब छोड़ दो, रेज्यूमे से मतलब ही नहीं, वो कुछ भी बात करे, bring your persona, bring your stories, bring something that really sets you apart. और हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं, ट्रेन करना पड़ता है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को सेलिंग का आइडिया ही नहीं है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बिजनेस स्कूल इज अ बिजनेस, पहले ये समझो। बिजनेस स्कूल का, और ये बिजनेस नहीं कि तुम्हें ले रहे हैं तो तुमसे फीस ले रहे हैं, ये तो उनको सैलरी नहीं करना, तुम तो वैसे ही जा रहे हो, पैर छू के जा रहे हो, तुम तो हार्वर्ड की प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उनके पास आ रहे हो। हार्वर्ड की प्रॉब्लम है कि 2 साल बाद हार्वर्ड को तुम्हें जॉब मार्केट में सेल करना। करेक्ट। तो वो गलत नहीं हो सकते। They can't be wrong with who they pick. They love people who sell because they eventually have to sell you, because they will not sell you, you will sell yourself. Correct. अब you can't sell on psychological or philosophical aspect. ये बंदे के views बड़े अच्छे। You have to sell on numerics. GMAT is a numeric, previous salary is a numeric, grades are a numeric, case study marks are a numeric. हर चीज तो आज देखो बी स्कूल रैंकिंग में क्या क्या पब्लिश होता है, पहले वाली सैलरी और आज की सैलरी, जो उसको सैलरी, जो जीमैट का, हर चीज न्यूमेरिक। तो आपके न्यूमेरिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे तो उनको ज्यादा एवरेज सैलरी मिलेगी। करेक्ट। दैट्स व्हाई दे टेक यू विद अ हायर जीमैट, क्योंकि हायर जीमैट मींस मोर इंटेलिजेंट हायर। तो उनका काम है, दे हैव टू सेल यू 2 years later, एंड इफ यू सेल योरसेल्फ दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर देम। दे नो व्हाट यू आर डूइंग। वो बेवकूफ नहीं, उनको दिख रहा है कि ये बंदा सेल कर रहा है, पीछे से दे कैन रीड एवरीथिंग, बट दे लव दैट। सो ये चीज इंडियंस को बड़ी मुश्किल होती है कि सेलिंग मतलब क्या। अपने बारे में मैं बात कैसे करूं, मेरा काम बात करेगा। आई कांट टॉक, पीपल कांट, या दे गेट वेरी कॉन्शियस। दिस इज व्हाट वी हैव टू ब्रेक, एंड 6 महीने लग जाते हैं ये माइंडसेट ब्रेक करने में। मजाक 10 सेमिनार के बाद भी लोग नहीं लिख पाते हैं। वी हैव टू से शेमलेसली बात करो, क्योंकि वहां पे वैल्यू होता है। वो कैसे सेल करेगा, आप ही सेल नहीं कर पा रहे हो, स्कूल को सेल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जॉब मार्केट में कैसे सेल। सो दैट्स व्हाट, बट या एटीट्यूड्स है, वही हमारा चैलेंज। उसमें चैलेंज भी नहीं हो तो फिर मजा क्या है काम करने। आपने सर चैलेंजिंग सिचुएशन को ही रोज का वो बना दिया है, बट आई थिंक इट्स नो, व्हाट यू सेड इज यू नो सो प्रोफाउंड दैट इफ यू आर नॉट एबल टू understand the business of a business school and what mindset do they operate with and what they want from you, and they understand you're doing it, but that's the default mechanism on which they're working because they want you to operate like that. That's when you will be able to break that conditioning and come out of that stereotypical mindset jo India mein most, like you said, students ka, and then you can stand out. No, you're so right. Exactly the point I wanted to communicate. So no doubt there. On that, sir, अब हमने बहुत बात की about obviously the exam, the mindset, your application, how you can get in even if you don't have something exemplary to showcase your journey.
Now, what I want to talk about is something which is buzzing all around in the market. Everybody is talking about it all across, which is now obviously we don't have the old GMAT format existing anymore, and we have the new focused edition that has come in. And while some people are settling into it and understanding what it is, there is still a lot of, I would say, let's say, not disagreements, but a lot of people are not able to come to terms with how this sudden change has happened. What change will it bring in terms of up selection? Kaise hoga? Do things drastically change? Does it become easier, more difficult? And how do I still make it into, my dream college? So if you could just throw some light on the new focused edition. Right. So first thing, it was a long-term thing coming because all business schools had been insisting that the exam did not focus completely on sellability to the company's aspect, because the world has changed so much in the last 10 years. Everything is data and AI. तो अगर आप डेटा के साथ प्रोफिशिएंट नहीं है, डेटा हैंडलिंग, डेटा एनालिसिस, तो उन्होंने जो थर्ड सेक्शन उसका नाम ही रखा है डेटा इंसाइट्स. पहले जो अभी तीन सेक्शंस आते हैं, क्वांटिटेटिव वर्बल और डेटा इनसाइट्स. तो क्वांटिटेटिव वर्बल तो पहले से ही आ रहा है. डेटा इनसाइट्स यूज्ड टू बी अ ग्रेडेड सेक्शन व्हिच वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट अर्लियर. ओके, अब उन्होंने उस सेक्शन को ग्रेड्स मतलब काउंट कर दिया शुरू में. तो आपके स्कोर में तीनों सेक्शंस काउंट हो रहे हैं. तो डेटा बिकम्स एन इम्पोर्टेंट सेक्शन, बट विच इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ योर क्वांटिटेटिव एंड वर्बल स्किल्स. तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये मिथ है कि बहुत डर लग रहा है, डेटा में सबसे ज्यादा स्कोर ला रहे हैं. उल्टा हो रहा है. हाँ, मतलब मोस्टली सबका स्कोर उसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, जो थर्ड मिस्ट्री सेक्शन एज यू यूज्ड टू कॉल. एंड yes, there is a lot of apprehension about everything new. Yeah. And a lot of people feel that एक कुछ comfort बन जाता है आपको कि मैंने उसकी पढ़ाई की थी. Even if they have no clue about कि वो तब भी खराब चल रहा हो मान लो, but हम हैं सेट हो जाते हैं. सेट हो जाते हैं. Uneasy marriages people carry on for 20-30 years. कि मालूम है कुछ नहीं चल रहा ठीक, लेकिन अब यहाँ पे चला लेंगे, यही मतलब दूसरा वाला और खराब होता है. Probably. So somehow that is, I think, the mentality that is. But it has been a very smooth transition. The credit has to be given to the maker of the exam also. GMAT ने बहुत अच्छा काम किया है. The exam is not more difficult or less difficult. They can't make the exam less difficult, obviously, क्योंकि एक global exam, the one that takes you to Harvard, shouldn't be easy anyway. कोई चीज इतनी आसान और आप उसकी जगह से कोलंबिया या वॉटन पढ़ने चले जाओ या So have they made it more difficult? No, this is not even more difficult. They've just added one section that is very relevant in today. And companies had been pressing the business schools, and the business schools had been pressing the GMAT for many years कि इस section की relevance है, इसको लेके आओ. Got it. But वो section, it's an extension of your math and language skills, quantitative and verbal skills. तो नया कुछ नहीं है. It's just a presentation. और मुझे भी लगा था कि यार कैसे परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, नया चीज है सब कुछ. लेकिन देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लोगों का जो 3 सेक्शन में परसेंटाइल आ रहा है. मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर क्रैकिंग द डेटा सेक्शन विद द मोस्ट एफर्टलेस ऑफ ईज. तो व्हिच इज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड. तो वही है कि आपको अपने मॉक पोर्टल पे अपने हर जगह पे चेंज करना है. तो हमने वो करके बहुत बैकएंड पे काम किया, बहुत प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन द रिजल्ट इज दैट पीपल आर एसिंग इट. Amazing. So gradually that apprehension will go away. Apprehension तब तक ही होता है जब तक 2 एग्जाम होते हैं. Correct. अब आप हटा ही लो, एक ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि एक ही एग्जाम देना है. अब तो है ही नहीं. 31st Jan was the last day. Right. 1st Feb से there is no such thing as two. एक दो महीने बाद लोग भूल भी जाएंगे कि कोई पुरानी एग्जाम थी भी से. आज एक स्टूडेंट पहली बार GMAT देने का सोचता है, तो उसके लिए तो GMAT ही है, उसके लिए पुरानी एग्जाम हो ही होगी. तो हमें क्या करना. तो ये तो ट्रांजिशन फेज था. अब डर वैसे भी खत्म हो गया. ये 2 महीने पहले का या 3 महीने पहले की न्यूज. लास्ट मंथ तक, 1.5 महीना पहले तक, वी वर ग्रैपलिंग विद दिस लाइक एन एपिडेमिक. बहुत बुरा हाल था. मैं हजार लोगों का सेमिनार करता था रोज की समझाने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं, नई एग्जाम भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, ये वो. बट देन व्हेन इट इज टेकन अवे, ना कोई पावर आपसे चली जाए, then what do you do? Right. When someone dies in the family, you learn to live without them. It's very simple. Bad analogy. But yeah, that is what it is. Yeah. So the exam is being handled very well. The GMAT said कि एक साल में 10 से 12 ही 100 percentile score आएंगे. जैसे कैट होती है 10 से 12 ही आएंगे. अब मैं बताता हूँ. कैट होता है तो 2.5 लाख लोग देते हैं साल की. 12 से 16 लोगों का 100 percentile आता. अब सबका कैसे आएगा? तो उसका नाम मतलब ही क्या 100%.
So 12 to 16 people. The GMAT is taken by the same number of people. So GMAT has come back and said कि हर साल 10 से 12 लोग ही globally एक साल में 100 percentile ला पाएंगे. अभी 3 महीने हुए एग्जाम को और top 1% has created 400 percentiles. Imagine इसकी स्केल सोचो कि अगर हम अपनी स्पीड से जाएं तो 16 तो हमारे आ जाना चाहिए. 3 महीने में 4 आ जाए तो 12 महीने में 16 तो हमारे आ जाना चाहिए. तो that's the standard we've been able to maintain. जब GMAT बोल रहा है annually globally there will be only 10 to 12. One institute, we are not only India. हम तो सिर्फ एक institute है, एक test prep and we have produced 4 in 3 months. So it's been a very, very good journey with that. Yeah. No, but thank you so much for sharing that, sir, because I'm sure that gives a lot of perspective to the audience and the viewers also कि डरने की कोई बात नहीं है, and you can definitely, it's just a moderate shift and you have to just adapt to the situation because अब कुछ हो भी नहीं सकता. Exactly. This is what it is and you have to accept the new pattern and everything that GMAT has said. And people have been scoring the highest in the new section. So there is nothing to worry fear. about, really. Correct. Right. With that, I think, sir, it's been a very interesting conversation with you overall, and we could keep going on. I don't think we'll be able to cut at any point, but I'd like to, bring this conversation to an end with asking you this one question for sure. हमने हर चीज की बात की and everything is there. But in your entire journey of 27 years of teaching, going through this entire journey yourself, getting an admit at Harvard, dropping out, IMA dropout, everything. If not one, what 2 or 3 things are the most valuable things that are stuck by you as somebody who's preparing to be amongst the top 1 percentile in life, not just in an examination or to crack into a top institution? How do you be amongst the top 1 percentile in life in general? See, I do 7-day-long events and you're most welcome to come and know the answer. But having said this, obviously there are attributes. There are people who talk about billionaire habits, and I don't talk about all of that. Yeah, that's an answer that can't be compressed in this. But I'll share one story that will probably a very small story. Sure. So we had a student from Bihar who did not have electricity for 22 out of 24 hours. Who had internet only at the railway station. That's it, nowhere else. 2,000 rupees a month he barely earned. Complete Hindi medium background. And that person, we have been able to get him to score once a 99th percentile when the 99th was the highest. And in the recent edition, I specifically requested this person called Amit Kumar to write the exam in the focus edition. IIT Bombay students who are 100 percentiles have got a score of 735. That is the 100 percentile. And this guy scored 775 just a week or 2 weeks back. My God. And he still cannot speak English to save his life. And he's still a farmer. He goes to the farm 3 a.m. to 5 a.m. in the morning to water the crops for subsistence farming. No selling of the crops, nothing, just subsistence. And it's in the Naxalite belt. The village is so far from the mainstream that is near Nepal border. It's near the foothills of some place. It's called Ratanpur. I could go on and on and on. So if a person like that, with some amount of molding and training and hand-holding and really guiding more than anything else, can score once a 99th percentile, the highest, and then the highest percentile 100, which is higher than people who are working in consulting, working with the best of the companies, IIT backgrounds, and he can smash them also by a margin of 40 points. It stands to reason that I know how to get to live the top 1% life. The most subtle way to say it. No, but I think I don't have anything to add on here. I mean, it is what it is. And again, it's always, I think, when your work starts speaking for itself and when there is impact that's there at such a large, I think, scale and exposure, you don't really need to, I think, how do I put it? There's nothing that will be at par with respect to, justifying what you bring to the table. But I think with that, I really want to thank you, sir, for taking out the time, for coming down, for sharing your story. I have gotten to know so much about your early years, your journey, and I'm sure everybody who's going to stick around till the end and watch this is going to go back with a very different mindset more than anything else. Because I think the major purpose was, like you said, for people to break that mold that they have been brought up with and then break through it. And I hope that
if not a lot, this podcast can probably help them break that mold at least even by 10%. I think it's our victory that way. Absolutely. And I think I would also like to conclude by saying that your intent is your biggest USP. Deep within, अगर आप fake हैं, अगर आप कुछ और चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं तो business चला रहा हूँ, I mean, हम देख रहे हैं India's most valuable edtech startups 2-2, 3-3 का क्या हो रहा है. Why are they falling with? There's something at the very core of you, that is intent. Yeah. कि मैं सुबह उठ के मेरे जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करके उनको कहीं पहुंचाना चाहता हूँ लाइफ में. पैसा तो आएगा ही ना. जो सड़क पे झाड़ू लगाता है उसको भी सैलरी मिलती है यार. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको भी पैसे देता है उस काम के. तो पैसा तो कोई भी स्किल्ड पर्सन होगा कमा ही लेगा. हमारे घर में अच्छा काम प्लम्बिंग करने जो आता है हम उसी को बुलाएंगे अगर एक बार अच्छी करके चले जाए. वो तो लाइफ लॉन्ग बन गया. Money is really something that you will earn no matter. So let it be an offshoot, never a driver number. And intent is your biggest USP. जब मुझसे लोग बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ तो करेगा, कहीं तो पहुंचा देगा. Correct. क्योंकि वो जेन्युइन है और वो बहुत जरूरी है इस दुनिया में. आपको अगर आगे बढ़ना है, वही फैक्टर सबसे बड़ा ट्रस्ट जो ब्रेक कर रहा है लोगों का. आई मीन रॉबर्ट कियोसाकी की अभी स्टोरी हम सब लोगों ने सुनी. The one who was जिसने पूरी दुनिया को फाइनेंस सिखाया, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा क्योंकि उसने ऐसी चीज कन्फेस कर दी जो कि कोई मानने को तैयार नहीं होता था. तो वही इतने लोग जो ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं दुनिया का. आई थिंक इन दैट वन बीकन ऑफ होप इज दैट आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. And you never break that. Why break that? I mean, आपके पास सब तो आ रहा है. You have fame, you have money, you have everything. Why break anybody's trust? Yeah. And work with that intent. सब कुछ मिल जाएगा आपको. Thanks, Daria. Love that. So thank you so much. An absolute pleasure. Wonderful. And thank you so much once again. That was it for today's episode. Don't forget to check out Sandeep sir's profiles. I'll be linking them in the description. I'll also be linking top 1%'s profiles. You should check them out. And I feel that if you're somebody who's aspiring to get into the top Ivy League institutions and be amongst the top 1%, then there's no other place because there is no existence of any other place to go to. That's all for today's episode. Don't forget to like, share and subscribe to the Dheria Decodes channel. And I'll see you in the next episode. Thank you.